रिपीट करता हूं और मॉडरेट करने के लिए आनंद को माइक सौंपता हूं। टॉपिक है मीडिया एंड द आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नैरेटिव, सोशल मीडिया एलिवेटिंग द क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आनंद से कि आनंद इस पैनल डिस्कशन को मॉडरेट करें। थैंक यू। Thank you very much. It's a real pleasure coming to Bhopal, and attending this really vibrant conference. And thank you very much also to my esteemed panelists. And over the next 1 hour or so, I think we can. Over the next 1 hour or so, because I have a flight to catch, और मिस्टर दीक्षित ये बता रहे हैं कि आजकल एयर इंडिया काफ़ी टाइम से आ रही है और जा रही है, सो मैं 1 घंटे बाद निकल जाऊंगा एंड आई विल पास ऑन द माइक। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड समथिंग दैट हैज़ garnered our attention for the last, I would say, since 2013, I would say end of 2013. So my endeavor would be to prize out something which is a very difficult task, prize out something that all the 3 panelists haven't mentioned these views before. So it's very challenging. It depends on the questioning, I suppose. So my first question is, everyone knows that the kind of fake narratives that have been peddled by the media since 2014, since 2013, everyone knows it. Everyone knows how it has been combated. Everyone knows the amazing role that Op India has played, and increasingly My Nation is also playing, and some individual warriors who's sitting right next to me have played. But I want to get to the kind of answers that you probably wouldn't have heard before. So let me begin with asking this question to Shefali, who's sitting next to me. Now, I had envisaged, or I had written about a month ago, that all the media narratives that we were talking about and trying to combat in Modi 1.0, they seem to be there right now in Modi 2.0. इसको कैसे चेंज करेंगे? क्या अगले 5 साल तक भी वही चलेगा जो पिछले 5 साल तक चला था? Isn't that kind of boring? Isn't that, something has to be elevated, and if I can, it's not a criticism, I think, Shefali, it's a reflection of what all of us are going through. That if you were to visit your own Twitter timeline from 2016 to 2019, May 22nd, and May 23rd ke baad, I think you relaxed for a month or so. Okay, but from June 23rd till now, I don't see any change. What I see is that you are exposing, you are combating the vicious propaganda. The propaganda hasn't changed at all. So is this what you are envisaging to do for the next 5 years as well? Is this question addressed to me personally, or am I supposed to be representative? It's a common question which I would ask Rahul as well, but See, you're right, in the sense that electoral victory is another thing and winning the war of narrative is another thing. So till the so-called left liberal narrative is still about peddling fake stories on intolerance, on attacks on minorities, on whatever, which has absolutely no basis. Like, for example, you saw all those stories about, people being harassed and forced to say Jai Shri Ram, but then suddenly it died down, right? So now the elections in Maharashtra are coming, so there is this whole new narrative about how RA colony needs to be saved or whatever. It changes periodically depending upon the election cycle. Yeah, there was a brief hiatus after the results, but yes, as long as the mainstream media continues to peddle the same fake narratives, I don't think any of us have a choice but to combat it. Or you can simply say that anyways, even after all the fake narratives that the mainstream media peddled before the elections, the people of India still chose exactly what they wanted to choose, right? It didn't work. We all saw the results. So in that sense, we do know that the
power of mainstream media to influence opinions is increasingly getting limited, which doesn't mean that they have stopped peddling fake narratives. It just means that people have become a little wiser. They know exactly what is happening on ground, and they are making their judgments based on what is happening on ground rather than what they read in the newspapers. I'll give you an example. So before the elections, I think BBC, Economist, everybody wrote huge articles about why India should not give Modi another chance or whatever. And I am seeing people, I meet every day, my vegetable vendor, the lady who works at my house, the watchman, the worker in IT industry. I live in Pune. And they are all telling me that we are going to vote for Modi because, and their reasons are different. My domestic help says that she got a house under the PM Yojana, so that's why she's voting. So people are making their opinions based on what's happening on the ground, and they're not really getting influenced by, you see a lot of outrage on Twitter, but it is limited largely to Twitter. People read and let it go, but they do not necessarily change their behavior based upon that. Having said that, personally, I had decided that after the elections, I would take a long break and write about things that I like, which are temples, textiles, and travel. But that didn't work out all that well, so I'm back to outraging. But okay, explain why it didn't work out. I have reduced my outrage time. But again, the fake narrative, it's like, if you have seen Forest Trails, there is a scene in which he's playing table tennis, right? He's playing with both arms. And constantly there are balls coming at him and he's fighting. It's kind of like that for people like us in social media, because a fake narrative is coming to you from so many different directions that you don't have a choice. You don't have get to think. You're basically just constantly, fighting those balls coming at you. So essentially what you're saying, before I come to Rahul, essentially what you're saying, Shefali, if I can sum it up, is that this is going to remain a constant. The fake narrative is going to remain a constant, like it was from 2014 to 2019. It is going to be from 2019 to 2024, and maybe 2024 to 2029. How can one change it? I'll give you an example. There's a very famous journalist, Gopi Krishnan from Pioneer, who exposed the 2G scam. He said once that 60 to 70% of all the journalists that we have in India are associated or are card-carrying members of SFI, ISA, the communist youth parties. So they are not, a leopard is not going to change its spot, so they are not going to change. How do you change this? So Rahul, can you address the first question, being the CEO of an organization that has busted a lot of narratives? And do you think there is a way of changing this, bringing in more non-left people into journalism? पहले तो मैं भोपाल आते ही मेरे मुंह से हिंदी निकलने लगती है मैं भी हिंदी में ही आगे से बात करूँ। हाँ, मेरी हिंदी भी अच्छी है। हाँ, तो मैंने एक बार ट्विटर पे मेरी और आनंद की शर्त लगी थी कि हिंदी किसकी अच्छी है, तो इन्होंने मुझे लगा आप आज वो चैलेंज ले लोगे और मुझे प्रूव करोगे कि नहीं, आपकी हिंदी मुझसे बेहतर है। चैलेंज ले लोगे। तो अभी पहले जो ग्रुप डिस्कशन, थोड़ा मैं भटक रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि मैंने अभी जो पहले ग्रुप डिस्कशन में होंगे उनको मैंने ये कहा था कि आजकल मुझे शौक चढ़ा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से बात की जाए। तो सीधा मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि अचानक क्या बातें शुरू हो गई। तो पहले शायद ये समझना ज़रूरी है कि नैरेटिव है क्या और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है और मीडिया का उसमें क्या रोल है और कितना बड़ा रोल है। नैरेटिव ऐसे सुनने में खासकर अंग्रेज़ी का भी थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, वैसे आजकल तो काफ़ी ये सुना जाता है, लेकिन है क्या? बेसिकली आप रोज़ जो सुन रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, वही नैरेटिव है। कुछ भी, इनफैक्ट आप अपने कॉलेज कैंटीन में या आपके फैमिलीज़ में जो चीज़ें बातें होती हैं, जो कॉमन एक साझा आपकी जो बिलीफ है कोई चीज़, उसी को नैरेटिव कहते हैं। और वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है, एक बहुत सिंपल से एग्जांपल के साथ समझाऊं तो जैसे खासकर अधिकतर युवा हैं तो कहते हैं ना कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप
वर्कआउट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ठीक है, लड़का लड़की अलग शहरों में चले जाते हैं, रोज़ रोज़ बातें नहीं हो पाती, उनका कॉन्टेक्स्ट कुछ और हो जाता है, उनका एक्सपीरियंस दिन का कुछ और हो जाता है, उनका कुछ और हो जाता है, और फिर धीरे धीरे संवाद टूटने लगता है और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप भी टूट जाती है। अक्सर हाँ नहीं होता, लेकिन ऐसा माना जाता है। तो ये इसका नरेटिव से क्या लेना देना है? नरेटिव इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप क्या बातें कर रहे हैं, आप दोनों के बीच क्या कॉमन थिंकिंग है, वो अगर आपके पर्सनल रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर सकती है तो बहुत कुछ को इम्पैक्ट कर सकती है। और जो आपकी सोशल थिंकिंग है, जो आपके पॉलिटिकल अवेयरनेस है, उन सबको तो इम्पैक्ट करेगी ही करेगी। तो आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से क्या कर रहे हैं ये तो आपके कंट्रोल में है, लेकिन समाज के तौर पे क्या बातें चल रही हैं ये किसके कंट्रोल में होता है? वो समाज पे क्या नैरेटिव चल रहा है। आपका घर का नैरेटिव तो आप संभाल सकते हैं, लेकिन समाज का जो नैरेटिव है, अगर वहाँ समाज का रिलेशनशिप बनता है या बिगड़ता है या टूटता है, तो वो जो नैरेटिव है, ये लॉन्ग डिस्टेंस कौन लाता है? वो मीडिया लाता है। ट्रेडिशनली मेन स्ट्रीम मीडिया अब तक वो लाता रहा है, और इसलिए नैरेटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मीडिया ही डिफाइन करता है कि कॉमन कॉन्टेक्स्ट क्या हो। बहुत सारे, मुझे लग रहा है आनंद ट्रोल करेंगे कि इतने सारे अंग्रेजी का शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन सॉरी। तो ये जो अगर आप कहते हैं, जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, जो आपके रामायण महाभारत थे, उनसे एक तरीके से नैरेटिव सेट होता था। अगर आपने किसी को कह दिया कि अरे ये तो राम है, अरे ये तो रावण है, समझ में आ जाती थी बात कि अगर आपने किसी को रावण कहा तो इसका मतलब क्या है, राम कहा तो इसका मतलब क्या है। आज के ज़माने में अगर आप किसी को कह रहे हैं कि वो फासिस्ट है, अरे वो तो लिबरल है, ये कौन तय करेगा? ये आज का रामायण और महाभारत कौन लिख रहा है? आज की जब मैं बात करूं तो 2019 नहीं, जैसे आनंद ने भी कहा था कि शायद हमें 2013 या और पीछे जाना पड़ेगा। और उसके पहले तो सिर्फ और सिर्फ ये काम, ये नैरेटिव सेट करने का काम, ये आपको ये कॉन्टेक्स्ट देने का काम, आपको ये मेटाफर्स देने का काम सिर्फ और सिर्फ मीडिया के कंट्रोल में था और किसी के कंट्रोल में नहीं था समाज के लेवल पे। और उसका काफ़ी एक जो तबका है जिसको कह सकते हैं कि लेफ्ट लीनिंग कह लें या जो कह लें, इस देश में अभी तो लेफ्ट और राइट का बड़ा ही घालमेल हो गया है, लेकिन एक खास तरह के सोच रखने वालों का इस पे कब्जा रहा है। जैसे आनंद ने बताया कि गोपी बता रहे थे कि 60 to 70% एक ख़ास स्टूडेंट फेडरेशन के ये एक इस तरह के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आते थे, तो उनका कब्जा मीडिया पे दशकों से है और उन्होंने बिल्कुल इस पे ऐसा कब्जा किया कि और किसी को कुछ कहने का, और किसी को कोई नैरेटिव सेट करने का, डेफिनेशन सेट करने का मौका ही नहीं दिया। तो और जब आपके पास इस तरह की पावर आ जाती है, एक और आपने सुनी होगी एक कहावत अंग्रेजी का ही है कि पावर मेक्स यू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर मेक्स यू एब्सोल्यूटली करप्ट। तो मीडिया के पास तो एब्सोल्यूट पावर था नैरेटिव सेट करने का, तो नैरेटिव में करप्शन तो आना ही था। जब हम मान के चलते हैं कि पावर मेक्स पीपल करप्ट, और वही आदमी जो कल को राजनेता बन सकता है, वही आदमी इंजीनियर, वही आदमी पत्रकार भी बन सकता है, तो पत्रकार कोई स्पेशल कहीं से पैदा होकर तो आता नहीं है। तो अगर पावर किसी एक को करप्ट कर सकता है, चाहे वो इंजीनियर हो या पॉलिटिशियन हो, तो पत्रकार को भी करप्ट कर सकता है। और ये नैरेटिव सेट करने का पावर पत्रकार के पास दशकों से था और वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो गया था, जिसके बाद सोशल मीडिया के कारण फिर जो काउंटर नैरेटिव था वो सेट होना शुरू हुआ। तो जो हमारा टॉपिक था कि जो आर्ट जो मीडिया का है, वो हम धीरे आगे चल डिस्कस करेंगे ही कि आखिर ऐसा मीडिया ने इस तरह का इतना होल्ड बनाया कैसे कि उनके पास और किसी के पास, और ख़ास करके एक तरीके के जो आइडियोलॉजी के लोग थे, वो इस लेवल पे पहुंच कैसे गए कि किसी और को नैरेटिव सेट करने का कोई अधिकार ही नहीं रह गया, या फिर उनके पास कोई रास्ता ही नहीं रह गया। रास्ता तब जाकर मिला 2010-11 के आसपास, जब सोशल मीडिया आया। तो वहाँ से आनंद का जो सवाल था वहाँ से शुरू हो सकता है कि हाँ, क्या जो दशकों से जैसा चला आ रहा था वैसा ही चलता रहेगा,
ये 2012-13 के आसपास एक वक्त ऐसा लगने लगा कि नहीं, सोशल मीडिया के कारण बहुत सारी चीज़ें टूटेंगी, और टूटी भी, और काउंटर नैरेटिव सेट होगा। शेफाली को भले ही कोई उस वक्त की बात कर रहा हूँ, कोई बड़ा सा न्यूज़पेपर कुछ आर्टिकल छापने ना दे, लेकिन इनके पास अपना प्रोफाइल होगा फेसबुक और ट्विटर पे, जिससे वो शायद एक जो न्यूज़पेपर के किसी एक कॉर्नर में इनका जो लेख छप, उसको जितने लोग पढ़ते उससे कहीं ज़्यादा पढ़ने लगे। तो 2012, 13, 14, इनफैक्ट इवन 15 तक बहुत हद तक ये जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया और एक ख़ास तरह की आइडियोलॉजी का जो नैरेटिव पे पकड़ था वो कम हुआ है। लेकिन उसके बाद खासकर 2016 के बाद जब ट्रंप यूएस में उनकी जीत हुई, उसके बाद अचानक उन लोगों को लगा कि, क्योंकि इंडिया में तो खैर पता चल ही रहा था, और ये जो तबका है जिसका नैरेटिव सेट करने पे बहुत उनका जो कब्ज़ा रहता है, उनमें एक चीज़ होती है कि उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान होती है। वो यूएस में इनके तरह के लोग जो भी काम करते हैं वही ये चीज़ कॉपी कर लेते हैं। तो ये 2013-14 में वो बेचारे, उनके पास वो कॉपी करने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि यूएस में सब बड़े आराम से थे। ये प्रॉब्लम यूएस में लोगों को दिखने लगी, उनके तरह के लोगों को यूएस में 2016 के बाद दिखने लगी, जब ट्रंप जीत गया। यहाँ ये मोदी के जीतने से परेशान थे, 2014-16 तक वो प्रॉब्लम यूएस में नहीं थी। जैसे ही ट्रंप जीता तब उनको यूएस के जो सो कॉल्ड लेफ्ट लीनिंग है, उनको लगने लगा कि हमारा नैरेटिव पे जो कंट्रोल था वो ख़त्म हो रहा है, तो उसको वापस कैसे पाया जाए। और उसके बाद से आप देख रहे हो कि फेसबुक और ट्विटर, इन सब पे भी ये अपना जो इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकें, फेक न्यूज़ क्या है, इसको डिफ़ाइन करने का वो एक अधिकार चाहते हैं। अभी कल हाल फिलहाल की ही बात है कि रवीश कुमार का एक क्लिप पॉपुलर हो गया था कि 5% जीडीपी कांग्रेस में, 5% जीडीपी उसमें, उसको उन्होंने फेक न्यूज़ करार दिया। अब जो रवीश कह रहे थे वो फेक नहीं था, वो कह रहे थे, ठीक है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट था कि वो उसके पहले उन्होंने वो भी किया था, सरकार की वो भी की थी, लेकिन आप उसको अचानक फेक कैसे कह सकते हैं? रवीश बायस्ड हैं या नहीं है, ये सब्जेक्टिव चीज़ है, हर इंसान बायस्ड होता है। अगर कोई रवीश को कहे कि वो अनबायस्ड है, उस पर आप उसको फैक्ट चेक करो। अब ये वो अधिकार चाहते हैं, इसलिए आनंद मैं थोड़ा पेसिमिस्ट हूँ कि शायद ये जो उनके पास जो पावर थी वो धीरे धीरे उनके पास वापस जा रही है। कि जब आप पहले नैरेटिव वो सेट करते थे, वो काउंटर नैरेटिव को डिस्क्रेडिट करने का, नीचे गिराने का वो पावर उनके पास वापस आ रहा है। फिर भी चूँकि 2-3 सालों में ही और प्लेटफॉर्म्स आए हैं और टूल्स आए हैं, और लोगों को ये लगने लगा है कि नहीं, सत्य सिर्फ एक ही नहीं हो सकता। जो आयरॉनिकली जो ये बात वो हमेशा से कहते रहे थे, उसी में वो यकीन नहीं करते। वो जो भी उनके अगेंस्ट होता है, नैरेटिव की बात होती है, उसको वो नीचा दिखाना चाहते हैं, उस पर सेंसरशिप डालना चाहते हैं। तो अभी मुझे थोड़ा, मैं इतना ऑप्टिमिस्ट नहीं हूँ इस बात को लेके। ये टेक्नोलॉजिकल वॉर है, इंफॉर्मेशन वॉर है, अभी शायद अगले 2-3 साल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि किस तरफ जाएगा। क्या जो पुराने मठाधीश थे उनके पास सत्ता वापस चली जाएगी, सत्ता ये ताकत कि आप नैरेटिव सेट करें, या फिर एक डेमोक्रेटाइजेशन जो कहा गया था 2010-9 के आसपास, जो नैरेटिव का हुआ था इंटरनेट के बाद, सोशल मीडिया के बाद, क्या वो डेमोक्रेटाइजेशन सच में रहेगा और सबको अधिकार मिलेगा कि वो अपनी बात कह सकें, भले ही गलत हो वो? उसको लेके मैं इस वक्त इतना ऑप्टिमिस्ट नहीं हूँ। राइट, मैं वही बात एक्चुअली अभिनव के पास आना चाहता हूँ। लेकिन ये अब जैसे आपने कहा, मुझे लगता है कि जो फोर्सेस हैं लेफ्ट वाले, ये कंबाइन कर रहे हैं। इनको पता चल गया है कि एक अकेला ये खड़े रहेंगे। सॉरी अगर मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं बरकरार रहूँगा बोलने के लिए, चैलेंज एक्सेप्ट जो किया है मैंने। तो जैसे आज आपने देखा कि हिंदू न्यूज़पेपर और बीबीसी मिल गए हैं फेक न्यूज़ बस्ट करने के लिए। ये तो ऐसा है कि अलकायदा, जैसे आई थिंक शिफाली ने, अलकायदा और लश्कर तौबा मिल गए हैं वर्ल्ड पीस को प्रमोट करने के लिए। बट ये इनको ये समझ में आ गया है कि ये अकेले ये नहीं लड़ सकते, बिकॉज राइट विंग का ये है, भले यूनाइटेड नहीं है लेकिन नंबर्स हमेशा ज़्यादा हैं। तो इनके पास वो कैसे,
लेकिन हम सिर्फ अभी मीडिया की बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जितने भी नए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, लेफ़्ट के अगर आप देखें, वायर, स्क्रॉल, उनके फैक्ट चेकर्स या जो भी हैं, पुरानी मीडिया है, उनको एस्टैब्लिशमेंट का सपोर्ट हमेशा मिला है। अगर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं मिला, उनको इन काइंड सपोर्ट भी मिला है। और दूसरा, जो उनके लाइक माइंडेड लोग हैं एकेडमिया में, उन्होंने ऐसा फोर्स किया है फिलैंथ्रोपिस्ट से बात करके कि फिलैंथ्रोपिस्ट ने उनको पैसा दिया। अगर आप कोई भी नई लेफ्ट फैक्ट चेकिंग या कोई भी नई डिजिटल मीडिया देखें तो धड़ाक से 1 साल के अंदर उनको $1 मिलियन या $2 मिलियन तो आराम से मिल जाता है। तो उनके 4-5 साल तो निकल ही जाते हैं उसमें, यू नो। तो ये जैसे मैं भी इस बात पे मैं पेसिमिस्ट हूँ। लेकिन अब मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि राइट विंग को किसने रोका है? 5 साल से सरकार बीजेपी की है, आरएसएस का हाथ उसके ऊपर है, करोड़ों लोग एबीवीपी और इस संस्था से जुड़े हुए हैं। अभी भी 60-70% आप टैकल, एक तरह से आप इनको टैकल तभी कर सकते हैं जब आप अपनी आर्मी भी आगे लाएं। तो आपसे मैं इसमें सच पूछना चाहूँगा, आपको कभी ऐसा लगा है कि एज अ राइट विंग पोर्टल आपको वो सपोर्ट नहीं मिलता एस्टैब्लिशमेंट से या गवर्नमेंट से जो कि लेफ्ट पोर्टल्स को मिलता है अपनी एस्टैब्लिशमेंट से? नमस्ते। मैं वैसे एक चीज़ से स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले कि ये मेरा घर है भोपाल, मैं भोपाल का ही हूँ। पुराने भोपाल में तलैया, बुधवारा, यहाँ पर मैं पैदा बड़ा हुआ हूँ। पहली इवेंट है मेरी। नॉर्मली कॉर्पोरेट वाले जितने भी लोग होते हैं उनको हमेशा से सिखाया जाता है कि थोड़ी सी भी जगह पर आपकी जो विचारधारा है उसके बारे में बात मत करो, करियर ख़त्म हो जाता है। और ये काफ़ी हद तक सही है, करियर ख़त्म कर दिए जाते हैं। अगर आपके मन में अगर अपने देश के प्रति थोड़ी सा भी प्यार है तो जैसा कि इन्होंने बोला कि आपको राइट विंग में क्लब कर दिया जाता है। सबसे पहले मेरा एक ऑब्जेक्शन इस बात पे है, राइट विंग और राष्ट्रवाद ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है। क्योंकि हमारी जो सभ्यता है वो हमेशा से इस तरह की रही है कि हम सबको अपने में सम्मिलित करके चलते हैं। अलग अलग धर्म की बात करें, अलग अलग कम्युनिटी की बात करें, सम्मान की बात करें, ह्यूमन राइट्स की बात करें। ह्यूमन राइट्स छोड़िए, आप अगर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े तक की बात करें, उन सब के लिए एक सम्मान है। ये हमारी सभ्यता है। तो जो वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने इसको जो ट्रांसलेट करा है इंडिया के अंदर कि ये राइट विंग है, ये राइट विंग नहीं है, ये राष्ट्रवाद है। कॉर्पोरेट के अंदर में हमेशा हम लोगों को डरा के रखा जाता है या बोला जाता है। यहाँ आने के पहले मैं अपने बोर्ड से मैंने बोला कि एक इवेंट है, सोशल इवेंट है, बट हो सकता है यहाँ पर मैं अपनी विचारधारा को एक्सप्रेस करूँ, क्या इज़ दैट ओके? मुझे मेरे चेयरमैन की तरफ से उन्होंने बोला कि जो बोलना है बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं एशियानेट के बोर्ड में गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मैं अपॉइंट हुआ, उस समय हमने एक बहुत छोटा सा एक लक्ष्य रखा कि न्यूज़ रूम की जो गाइडलाइंस हैं उसमें हमने बहुत छोटी सी बात करी कि जो भी जर्नलिस्ट लोग हो, भारत के लिए सम्मान रखो, भारतीय सेना के लिए सम्मान रखो। आप लोगों को लगता है कि इसमें किसी भी तरह का कुछ गलत है? क्या ये हमने क्राइम किया था? लोगों का जो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था उस समय, अमित, उसके बारे में इतना स्ट्रॉन्ग एक मीडिया नैरेटिव क्रिएट किया गया कि जर्नलिस्टिक फ्रीडम ले रहे हैं हाथों से, वगैरह वगैरह। मतलब अगर हम भारत की मीडिया है और भारतीय सेना को अगर समर्थन कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्व नहीं है, मगर ये नैरेटिव जो जिस तरह से डिज़ाइन किया जाता है उन्होंने किया वहाँ पर। So coming back to your original question, एशियानेट क्योंकि काफ़ी बड़ा ग्रुप है, इसमें हम इस्टेब्लिशमेंट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट दोनों तरह के व्यूज़ को हम सपोर्ट करते हैं। एक्सप्रेस करने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं। हम डिसाइड नहीं करते हैं कि किसको क्या बोलना है। कुछ जर्नलिस्ट हैं जो थोड़े से लेफ्ट साइड पे बात करते हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं जैसे माई नेशन पोर्टल है वो राइट, मतलब भारत की बारे में, भारत के सपोर्ट में बात करते हैं। रियलिटी ये है कि हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको शेफाली या राहुल बोल रहे हैं वो उतना मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। बहुत हद तक फेसबुक या जो बाहर के जो पोर्टल्स हैं, अब आप टिकटॉक है जो चाइनीज़ पोर्टल हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं।
मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. मेरा अगर एक नॉर्मल, आई डू अ डेली शो कॉल डीप डाइव विद अभिनव खरे. नॉर्मल एक वीडियो की जो रीच होती है वो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख के अराउंड जाती है. 60,000, 50,000, 40,000 इस तरह के व्यूज़ आते हैं. मैंने जब धारा 370 के हटाने के समर्थन में वीडियो किया, फेसबुक ने कुछ नहीं किया, उसको ब्लॉक नहीं किया. देयर वाज अ शैडो बैन एंड उसमें सिर्फ 400 व्यू थे. दूसरी बार फिर मैंने किया प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी के सपोर्ट में, अगेन उसमें फिर से 50 व्यू. सो ये कहने को ये लोग सब कह देते हैं कि एल्गोरिदम डिसाइड कर रही है, बट हर बार जब कोई भी ये बात करते हो, जब आप बताते हो कि हमें हमारे भारतीय होने पे गर्व है, वो सारे जो नरेशंस होते हैं, जो सारे वीडियोस होते हैं, उस पर एक शैडो बैन होता है. शेफाली के आई थिंक प्रोफाइल पे काफ़ी बड़ा शैडो बैन किया था ट्विटर ने इलेक्शंस के टाइम पे, ताकि इन लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाए. माई नेशन पोर्टल की बात करते हैं, इलेक्शन के सिर्फ 2 महीने 3 महीने पहले पूरा का पूरा पोर्टल जिसके फेसबुक पे 14-15 लाख फॉलोअर्स थे, उसको ब्लॉक कर दिया. कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि क्यों है. और आप कह रहे हैं, आपने कहा कि आरएसएस का सपोर्ट है, बीजेपी का सपोर्ट है, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट आपका है. मैं इस बात से बहुत असहमत हूँ. इस्टेब्लिशमेंट आज भी फॉरेन फंडेड जो लोग हैं उनके हाथ में है, जुडिशरी उनके हाथ में है, मीडिया नरेटिव उनके हाथ में है. एक लेफ्ट साइड का भारत के, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा. आपने ये बात एकदम ठीक कही है, कोई मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा. मेरा सवाल ये एडेड था कि ये 5 साल से तो बीजेपी आरएसएस थे, वो ये चेंज क्यों नहीं कर पाए? क्या उनमें ये इनर्शिया क्यों है? एस्टैब्लिशमेंट, पुरानी एस्टैब्लिशमेंट को गिराएं और अपनी एस्टैब्लिशमेंट लाएं. देखिए, ये जो संघर्ष हैं, जो बड़े बड़े संघर्ष, बड़े बड़े जो संग्राम होते हैं, ये कुछ महीने, कुछ हफ्ते और कुछ सालों की लड़ाई नहीं होती है. ये कम से कम 20 से 30 साल लंबा संघर्ष है. ये होगा और हम तोड़ कर रहेंगे इसे. इतना टाइम राहुल के पास नहीं है और आपके पास भी. बट ये अगला सवाल मैं एक्चुअली राहुल पहले आना चाहूँगा और फिर बाद में शिफाली के पास. वो ये डायरेक्टली रिलेटेड टू, सॉरी, क्वेश्चंस बाद में. हाँ, इनफैक्ट ये अच्छा है कि मैं जेएनयू से हूँ. आजकल कोई भी ऐसे हाथ खड़ा करता है क्वेश्चन के लिए, मुझे लगता है आज़ादी मांग रहा है. सो पर अभी जो ये पिछले 1 महीने में जो हमारा नैरेटिव, बाकी सारे नैरेटिव आप खुद ही जानते हैं जो 5-6 साल से चले आ रहे थे, इमरजेंसी आ गई और ग्रोइंग इंटॉलरेंस, चर्च अटैक और ये सब हटा दिए एकदम. लेकिन पिछले 1 महीने से अगर आपने देखा होगा, बहुत ही डेंजरस नैरेटिव चल रहा है, जिसमें नॉर्मली इंडिया में जो नैरेटिव चलते हैं उसमें 90% इंडियन मीडिया का हाथ रहता है, 10% फॉरेन मीडिया का. ये जो नैरेटिव पिछले 1 महीने से चल रहा है, अगस्त 5 से, इसमें एटलीस्ट 60 to 70% हाथ फॉरेन मीडिया का है और ये कश्मीर का नैरेटिव चल रहा है. अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस नैरेटिव में हम इतना घुस गए हैं कि हमें खुद, आई एम फीलिंग हेल्पलेस एक्चुअली, यू नो, आई नीड हेल्प. सो दैट इज व्हाई आई विल आस्क राहुल दिस क्वेश्चन एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैं आपसे एक शो ऑफ हैंड्स जानना चाहूँगा. आप कितने लोग यासिन मलिक को जानते हैं? नियरली ऑल. ठीक है. कितने लोग गिलानी को जानते हैं? सब जानते हैं. कितने लोग शहला रशीद को जानते हैं? सब. कितने लोग राधिका गिल को जानते हैं? 3. एकलव्य को? 2. मेलू राम? कोई नहीं जानता. ये है ये पावर नैरेटिव की. ये इसमें जब फॉरेन मीडिया घुस जाता है तो उसमें इंडियन मीडिया जो कि नॉन लेफ्ट है वो भी एकदम हेल्पलेस होने लगता है. ये राधिका गिल, एकलव्य, मेलू राम, सागर साही, ये वो दलित, वाल्मीकि समाज के, गोरखा समाज के और रेफ्यूजीज, होमोसेक्सुअल्स, ये वो लोग हैं जो कि 70 साल से इनकी ह्यूमन राइट्स हैव बीन ट्रैम्पल्ड बाय आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A. आपने कितने आर्टिकल देखे इन पे? कितने लोग इनसे जाके मिले और कहा कि तुम 70 साल से हमारे पास ऐसे आर्टिकल्स और लॉज थे जो कि तुम्हें, यू वुड बी कंडेम्ड. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हो, यू कैन ओनली गेट अ जॉब एज अ स्वीपर. यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ द कंट्री. द रेफ्यूजीज कैन नॉट हैव बाय अ हाउस. इवन नाउ ये लाखों की तादाद में है.
ये मैंने जब पहले देखा, मैं खुद शर्मिंदा हूं कि मुझे भी ये पता नहीं था जब तक रतन शारदा जी ने इस पे एक आर्टिकल लिखा, और फिर एक इंडिया टुडे की एक रिपोर्टर हैं, पूजा शैली शायद नाम है, उन्होंने जाके राधिका गिल के फादर का इंटरव्यू लिया। ये है नैरेटिव की पावर। आप सब वो लोग जानते हैं, उनका सपोर्ट वर्ल्ड कर रहा है, जो गार्डियन पढ़ते हैं, BBC पढ़ते हैं, ये यासिन मलिक जैसे, गिलानी जैसे लोगों का सपोर्ट कर रहा है, जिन्होंने 70 साल से इन लोगों पे अपने पांव तले दबाए रखा। और ये लोग कहते हैं कि हम प्रो दलित हैं, हम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। शर्म से डूब मरने वाली बात नहीं है। तो इसको जो चेंज करना है वो सिर्फ ग्राउंड रिपोर्टिंग से चेंज हो सकता है, कि वहां पे आप नॉन लेफ्ट वाले 10 लोग भेजें, इन सब 10 लोगों से, दलितों से, वाल्मीकि से, गुरखा से ग्राउंड रिपोर्ट करें, वो रिपोर्ट आगे आए, उसकी क्रेडिबिलिटी रहेगी। तो मैं ये राहुल से पूछना चाहूँगा कि आजकल जो नए पोर्टल्स हैं, जैसे ऑप इंडिया है, माई नेशन है, उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं? पहली बात तो आप ये मानते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट एसेंशियल है नैरेटिव को डिस्ट्रॉय कर, फेक नैरेटिव को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और सेकेंडली आप कितना चाहते हैं कि आपके पोर्टल्स ग्राउंड नैरेटिव रिपोर्टिंग करें? ये तो मतलब कोई दो मत है ही नहीं कि ग्राउंड रिपोर्टिंग से ही बहुत हद तक नैरेटिव सेट होता है। ऑब्वियसली ओपिनियन, ऑपेड, इन सब से तो होता ही है, लेकिन स्केलेटन है ग्राउंड रिपोर्टिंग, वो नरकंकाल है जिस पे आप ओपिनियंस वगैरह से उस पे मांस चढ़ा सकते हैं, लेकिन जब स्केलेटन ही नहीं होगा तो वो पूरा का पूरा बनेगा कहाँ से? तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा पोर्टल या जो नॉन लेफ्ट है, जैसे अभिनव ने सही कहा कि शायद राइट विंग कहना भी, फॉर एग्जांपल यू आर नॉट अ राइट विंगर, लेकिन यू आर नॉन लेफ्ट, तो जो नॉन लेफ्ट है उसमें सारे लोग शायद इस बात को मानते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस बात को रियलाइज़ नहीं करे कि ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो नहीं हो पाता क्योंकि ये बहुत महंगा काम है। न्यूज़ गैदरिंग बहुत उसमें पैसा लगता है। अभी यही तो चक्कर है। अब ये पिछले 1 महीने में जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, गार्डियन, BBC, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब वहां पे इन्होंने अपने रिपोर्टर्स भिजवा दिए हैं, उनके पास और ये पैसा पूरा फेक नैरेटिव लगा रखा है कि हमारे पास फोन नहीं है, यू नो। सो पर पॉइंट इज, उसमें आता है फ्रॉम श्रीनगर, फ्रॉम व्हाटएवर। सो हाउ डू यू कॉम्बैट दैट? वही, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। उनके पास एक तो ये सारे जो चाहे उनके नए पोर्टल हों या पुराना इंटरनेशनल है, वो दे आर फ्लश विद फंड्स, तो उनके पास पैसा है कि वो रिपोर्टर वगैरह भेज सकें। हम वहाँ पे मार खा जाते हैं। दूसरी चीज़ जो है कि वही होता है कि अगर बहुत सारे वैसे आपको रिपोर्टर मिल जाएंगे जो फ्रीलांसर्स हैं, उनको आप भेज सकते हो, लेकिन कोई भी इंसान अगर वो नॉर्मल रिपोर्टिंग भी करे तो उस पर भी, तो उसकी भी तो क्रेडिबिलिटी पर ही अटैक करने लगते हैं। जैसे राहुल पांडिता का नाम सुना होगा। राहुल पांडिता किसी एंगल से राइट विंग का नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो चूँकि उसकी रिपोर्टिंग अलग होती है थोड़ी कश्मीर पे, तो उसको सरकारी मोदी का आदमी और क्या क्या पता नहीं कह देते, जबकि वो तो नक्सलियों के एक तरीके से समर्थन में उसने किताब लिख रखा है। वो किस हिसाब से संघी हो जाएगा, वो तो फिर राहुल गांधी भी संघी हो जाएंगे। तो जब ऐसे लोगों को भी उनके करियर पे, उनके क्रेडिबिलिटी पे आप अटैक करने लगते हैं, तो बाकियों को भी डर लगने लगता है। अगर आप किसी फ्रीलांस रिपोर्टर को भी कहेंगे कि हाँ हम चाहते हैं आप इस तरीके का लाओ, तो उनको लगेगा भाई जो एस्टैब्लिश्ड रिपोर्टर हैं उनको तो ये छोड़ नहीं रहे, तो हमें कहाँ छोड़ेंगे? तो आपको लगता है ये चेंज नहीं होगा? नहीं, हो सकता है। एक तो जैसे ऑप इंडिया को लोग सॉरी टू इंटरप्ट यू, जैसे अभी ये नई दिल्ली में मंदिर पे अटैक हुआ था अल्लाह अकबर कह के, सो आई थिंक दैट वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द फ्यू ओकेजन्स वेयर स्वराज्या ने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करी और ऑप इंडिया ने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, और ये ग्राउंड रिपोर्टिंग ने ही इस फैक्ट को आगे लाया कि दिस वाज अ हेट क्राइम, दिस वॉज नॉट सम कम्युनिटी, मतलब यू नो नॉन, ये हिंदू मुस्लिम का केस, बाकी सारे लोग अगर आप अभी देखें वो जो फैक्ट चेक, जो हेट क्राइम, उसमें ये एडेड नहीं है। सो दिस इज द पावर ऑफ ग्राउंड रिपोर्टिंग, राइट। तो
Even here, despite, as I remember correctly, the story about the attack on the temple was first broken on social media. किसी ने वो वीडियो डाला था. उसके बाद स्वराज्य and Op India were the first ones to go there and ground report. Then the story suddenly got traction on social media. So after that, mainstream media, so-called traditional mainstream media, got into it. Then they went and then they turned the whole thing around and they turned it into a parking dispute. They said it is not a hate crime at all. वो तो hate crime हुआ ही नहीं था. किसी ने अल्लाह अकबर बोला ही नहीं था. वो किसी ने किसी की गाड़ी घर के आगे पार्क की थी तो उससे झगड़ा हुआ एंड बाकी के लोग आ गए और मंदिर तोड़ दिया. ऐसे कैसे हो सकता है? अगर एक चर्च पे एक कोई दारू पिया हुआ क्रिश्चियन आदमी ये पत्थर मारता है तो आप पूरा झूठा नैरेटिव क्रिएट कर सकते हो कि ये माइनॉरिटीज़ पे अटैक है, ये क्रिश्चियंस पे अटैक है, ये वो है, ये इंटॉलरेंस है. और यहाँ पे आपको कैमरा पे दिख रहा है कि 150 लोगों का मॉब वो चिल्ला के मंदिर तोड़ रहा है. आप कैसे कह सकते हो कि पार्किंग डिस्प्यूट है? वो भी जब ग्राउंड रिपोर्टिंग हो चुकी है, स्टोरी ऑलरेडी आ चुकी है, इवन आफ्टर दैट द मेन स्ट्रीम मीडिया ट्राई टू पेंट इट इन अ टोटली डिफरेंट कलर. And because they have a reach, the international media obviously caught on to their version, and which happens not this time, it happens every single time. जैसे मुझे बड़ी हंसी आई जब मैंने सुना कि हिंदू और BBC फेक न्यूज़ कॉम्बैट कर रहे हैं. वो तो ऐसा हो गया ना कि ओसामा और दाऊद दोनों मिलके टेररिज्म के अगेंस्ट मूवमेंट शुरू कर रहे हैं. ऐसा ही हो गया. हिंदू की एक रिपोर्टर थी जिन्होंने ये, मैं पुणे में रहती हूँ तो मुंबई में चिंचपोकली में एक रेलवे ब्रिज गिरा था. किसको मालूम है वो स्टोरी? तो वो जब गिरा था तो हमारे यहाँ नॉर्मली ऐसा होता है कि जब तक हेल्पिंग एजेंसीज आती नहीं हैं तब तक वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो अपनी तरह से बचाव कार्य में जुटे रहते हैं. वो हर जगह पे होता है, राइट? तो ये चिंचपोकली के आसपास जो स्लम्स के जो लोग थे वो आके वो लोग जो अटक गए थे वो ब्रिज में उनको मदद करने लगे. और वो चूँकि एक लेडीज़ स्पेशल निकल गई थी तभी, तो वो ब्रिज पे जो अटक गए थे लोग उनमें से लेडीज़ की संख्या ज़्यादा थी. तो वो जो लोग आए वो उनको हेल्प कर रहे थे. तो उसमें से एक 8 सेकंड का वीडियो था. उसमें दिख रहा है कि एक आदमी, एक औरत वो पुल के अंदर अटक गई है, उसको पुल कर रहा है. एंड फ्रॉम दैट एंगल, just on a 8-second video, the Hindu reporter did a story saying that in India a dying woman gets molested. तो ये तो इतना परवर्ट माइंडसेट है कि आपने पहले से ये कर दिया. आपको ये नैरेटिव सेट करना ही है कि भारत में जो मरने वाली स्त्री है उसके ऊपर भी बलात्कार हो सकता है. ये नैरेटिव आपको बताना है, इसलिए आपने वो 8 सेकंड के वीडियो पे वो स्टोरी की और वो हेडलाइन दी. और उस शाम तक वो हेडलाइन सारे, अभी भी आप अगर गूगल करेंगे तो आपको इंडिपेंडेंट में दिख जाएगी स्टोरी, गार्डियन में दिख जाएगी, बज़फीड पे दिख जाएगी, यहाँ वहाँ दिख जाएगी, सेम स्टोरी. उसके बाद जब वो स्टोरी आ गई, वायरल हो गई, तब लोगों ने उसी घटना के, उसी इंसान के अलग अलग एंगल से वीडियो डाले सोशल मीडिया पे, जिसमें साफ दिख रहा था कि वो एक्चुअली उस औरत को निकालने की कोशिश कर रहा था, उसको मदद करने की कोशिश कर रहा था. लेकिन तब तक उसकी इमेज और भारत की इमेज बन चुकी थी कि भारत में जो महिला मर रही है उसके साथ भी ऐसा घिनौना व्यवहार हो सकता है. और उस आदमी की आप सोचिए, वो पता नहीं सोशल मीडिया पे हो नहीं हो, सामान्य परिस्थिति का आदमी था. उसमें उसकी जगह पे अगर आप होते और ऐसी न्यूज़ अगर छप जाती 8 सेकंड के वीडियो के ऊपर, और आपके बच्चों को वो न्यूज़ दिख जाती, आपकी बीवी को वो न्यूज़ दिख जाती, आप जहाँ स्कूल में जाते पढ़ाते या कुछ काम करते वहाँ ऑफिस में वो न्यूज़ दिख जाती, तो आपका क्या होता? और जब ये न्यूज़ पता चली कि ये झूठ है तो तीसरे दिन हिंदू ने अपॉलॉजी छापी. वो अभी भी है, इफ़ यू सर्च यू कैन फाइंड दैट अपॉलॉजी. लेकिन तब तक वो इंटरनेशनल मीडिया पे न्यूज़ हो गई ना, जो बदनामी थी वो हो गई उस इंसान की. हाउ मच वर्ड्स कैन इट गेट that you are actually trying to save a woman's life and people are telling you that you are nothing but a rapist? Can you imagine that you all are all men? What if it happens to you? And it could happen. How would you feel? But the only thing that the Hindu did was to issue a 4-line apology. That is it. The journalist wasn't sacked. Hindu wasn't made to pay compensation to that person for defaming him. And this is the narrative that has been set because that is an image that the newspaper wanted to create. But because the power of
local media plus international media, it's such a winning combination that things stay in cyberspace for a long time, and they're still saying, even though Hindu has apologized, other publications have not taken down the story, and that is the tragedy. I don't know how to tackle this, because इसमें जैसे ये कह रहे हैं कि the financial powers of national media and now mainstream media also run very deep. So how to counter this narrative? It's an open question. In fact, मैं इसमें next question is to Rahul and to Abhinav. इसमें मैं और एक ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि एक गुस्सा सबको आता है जो कि फेक न्यूज़ और फेक नैरेटिव देखता है जब इंडिया बदनाम हो रही है. Modi, all these people are doing lying, false allegations on all these people, and especially on India. You get very angry. तो मैंने एक बीजेपी मिनिस्टर से एक बार पूछा कि आप इसका कुछ करते क्यों नहीं है, ये क्या चल रहा है, आपको देख के अच्छा लगता है क्या जब हम लोगों का खून खौल जाता है आप. तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, ऑब्वियसली आई वोंट नेम दैट पर्सन. उन्होंने कहा कि ये हमारे कार्यकर्ताओं के लिए ये आग की तरह काम करता है. तो ये मेरा सवाल है कि भाई आप जितना भी फॉल्स नैरेटिव फैलाना है, मैं कॉन्ट्रेरियन व्यू ले रहा हूँ, आप फैलाते रहो. 2014 में मोदी और बीजेपी गॉट 280 सीट्स. 2014 से 2019 तक जितना फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया है वो पिछले 15 साल में किसी ने नहीं फैलाया होगा. व्हाट वाज द रिजल्ट? मोदी गॉट 303. तो ये सवाल ये है कि भाई इसको इग्नोर क्यों नहीं कर देते, चलता रहे, बिकॉज वोटिंग पब्लिक पे इसका फर्क नहीं पड़ रहा है. Isn't that apparent? मैं थोड़ा सा डाइग्रेस होऊंगा, दो पार्ट में इसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ. पहला, ये प्रोपोगेंडा मतलब खासतौर पे ये ब्रिटिश बुलशिट कॉर्पोरेशन वॉशिंगटन पोस्ट ये क्यों करते हैं. किसी भी कम्युनिटी के लोगों को उनकी जड़ों से अगर उखाड़ दो, उनको अपोलोजाइज करवाओ, उनको शर्मिंदा महसूस करवाओ आपके अपने भारतीय होने पे, बार बार बोल कर, तो क्या होता है, वो देश, वो कम्युनिटी अपने आप कमज़ोर हो जाती है. ये इन्होंने हमारे साथ 200 साल करने की कोशिश करी है. सॉरी, ये थोड़ा सा मेरे लिए काफ़ी इमोशनल है, क्योंकि लंदन के मेरे जो प्रवास में जब मैं वहाँ रहता था, वहाँ के जो लोग हैं वो उनको इस तरह का बताया गया है, भारत और अफ्रीका, हम लोग ब्राउन्स असभ्य लोग थे, तो वो वाइट मैन्स बर्डन था. मतलब एक गोरे आदमी ने हमारा उद्धार कर रहे थे. मदर टेरेसा की अगर पूरी आप इमेजरी देखो तो हिंदुस्तानी जो हैं, हम अपने लोगों का ध्यान नहीं रख सकते थे. यूरोप से एक वाइट महिला को आके हमारा उद्धार करना था. वहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, आपस में कास्टिज्म वगैरह वगैरह का नैरेटिव सेट किया, उन्होंने आके हमारा उद्धार किया. $45 ट्रिलियन लूट कर चले गए यहाँ से वो, और उसके बाद साले झूठ बोलते हैं इस बात को लेकर कि उन्होंने हमारे ऊपर उद्धार किया है हमारा. Every time at my campus I had fights with them. कोई उद्धार नहीं किया है, तुम लोग चोर हो, हमारे पैसों से लंदन बनाया है तुमने. अब की बात करते हैं, करा तुमने 200 साल, और देखा जाए तो 10-11 शताब्दियों से हम लोग रहे हैं परतंत्र में. अब हम जाग गए, दोबारा मौका नहीं देंगे आप लोगों को सेट करने का. उन लोगों की जो औकात है आज की तारीख में, वो केवल जो पड़ोस में जो पम्मी आंटी होती हैं, जो गॉसिप करती हैं, वो मैं कहता हूँ ब्रिटिश. तो ये वॉशिंगटन पोस्ट, BBC, ये लोग पम्मी आंटी से भी वर्स हैं. हमारे घर में पड़ोस के लड़का क्या कर रहा है, तुम अपने काम से काम रखो. लंदन में जॉब नहीं है, तुम्हारी इकोनॉमी की बैंड बज गई है, तुम्हारे लोग यहाँ पर नौकरी मांगने के लिए आ रहे हैं, तुम हमको बता रहे हो कि हमारे देश में क्या होगा. आनंद के टॉपिक पे वापस आता हूं. यस, हम उनको बहुत सक्सेसफुली इग्नोर कर सकते हैं. हमने उनको इग्नोर किया है. 2014 में इन्होंने कोशिश करी थी, 2019 में कोशिश करी थी. BBC ने आर्टिकल लिखा था, कन्हैया कुमार इज द न्यू लीडर एंड द वेव एंड व्हाट नॉट. क्या हुआ, साले की जमानत जब्त हुई कि नहीं हुई?
मैं JNU के आदमी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहता। फाइनली आप कितना भी हमको हीन भावना देने की कोशिश करो, अब भारतीय जाग गया है, हम लोगों को दबा नहीं सकते हो तुम लोग। और ठीक है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अब ओपनली बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि एक बार आप बोल दो संघ के सपोर्ट में तो आपको गांव वाला, देहाती वगैरह वगैरह, और यंग एज में कई बार क्या होता है जब आप 19, 20, 21 साल में 21 साल में भारत से बाहर चला गया था, तो काफ़ी कूल क्राउड का पार्ट रहना चाहते हो तो वो आप अंदर रखते हो, लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि ठीक है हम ओपन आकर नहीं बोलेंगे। हर एक सर्वे में वो दिखाते हैं कि कांग्रेस जीत रही है, जब रिजल्ट आता है तो उनकी बैंड बजती है, हम वोट देकर उनको दिखाते हैं बीबीसी तुम यूजलेस हो। इसमें मैं राहुल से सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर हम इनको टोटली इग्नोर कर दें, और जैसे देखा है कि 2014 से ज़्यादा सीट्स बीजेपी लेके आई है, लेकिन एक उसमें सप्लीमेंट्री में ये ऐड करना चाहूँगा कि कोई भी इवेंट होता है तो ये हमेशा कहते हैं कि मोदी जी इस पे बोलें, मोदी का कोई कमेंट नहीं आया। तो ये फोर्स जो किया, अगर आपने देखें गौ रक्षक के बारे में भी मोदी ने बोला था, तब तक ये जो स्मगलिंग का पूरा नैरेटिव चल रहा था वो किसी को पता ही नहीं था। तो ये भी तो इसका एक इफेक्ट है। मैं काफ़ी खुश हो गए हैं तो मैं थोड़ा रंग में भंग डाल देता हूँ, तो पेसिमिज्म वाली बात फिर कर दूँ, क्योंकि हमें शायद वही गलती नहीं करनी चाहिए जो इन्होंने की थी, कि वो भी 2 बार जीते तो उनको भी लगा कि शायद सब उन्हीं के तरह सोचने लगे हैं। इलेक्टोरल विक्ट्री अपनी जगह है, वो नरेंद्र मोदी की विक्ट्री है, बीजेपी की विक्ट्री है। नैरेटिव और आइडियोलॉजी की विक्ट्रीज हो ये ज़रूरी नहीं है, लगता तो है ही कि है, तो उसको हम यूँ मान के चलें जैसा उन्हें लग रहा था कि सब सही है। चुनाव जीतना अलग है, और नरेंद्र मोदी की इमेज के कारण वो जीते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि, और 100% ये तो श्योर है कि हर बंदा जिसने नरेंद्र मोदी को वोट दिया होगा, आधे से ज़्यादा को तो शायद आइडियोलॉजी के बारे में मालूम भी नहीं होगा कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या है, और तो हम आइडियोलॉजिकली भी जीत रहे हैं ये तो मान के चलना गलत होगा। नरेंद्र मोदी ऑब्वियसली उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उनको पड़ता भी नहीं है, लेकिन जो आइडियोलॉजी या इन सब को अपने आप को वॉरियर मान के बैठे हैं या हैं, वो शायद उनको इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि हम जीत रहे हैं। अभी हॉलीडे पे ही मैं था तो यंग बेंगलोर में ही 25 साल के लड़के थे, वो पूछे भाई आप क्या करते हो, तो मैंने बोला ये ऑप इंडिया है। अच्छा भी क्या है, उन्होंने कहा न्यूज़ एंड ओपिनियन साइट्स ही है, लेकिन हम न्यूट्रल होने का दावा नहीं करते, हमारा जो बायस है, आइडियोलॉजी है, हम वो साफ कहते हैं कि ये है। तो अच्छा तो फिर पैसे कैसे आते हैं? मैंने कहा कि लोग जो आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं उसमें से कई लोग हमें पैसे भी देते हैं, एडवर्टीजमेंट जैसे आता है, तो उसको समझ ही नहीं बताई। अच्छा हाँ, अपने अपने आइडियाज़ को लोग प्रमोट करने के लिए आपको पैसे देते होंगे, मतलब उसको आइडियोलॉजी क्या शब्द है वही मालूम नहीं है। तो इसलिए मतलब मैं ऑब्वियसली मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। हर आदमी के अपने अलग अलग लाइफ में उनके अलग अलग वक्त पे अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब कोई सोचे। तो नरेंद्र मोदी को इतना जो बड़ा बहुमत मिला है उसमें कितना % आइडियोलॉजिकली कमिटेड लोग हैं या इस बात को समझते हैं, ये हमें मान के नहीं बैठना चाहिए। ये उनकी वेलफेयर और बाकी 1000 चीज़ों की मिक्सचर का जीत है। तो इसलिए हम इनको इग्नोर कर दें क्योंकि मोदी जीत रहे हैं, मुझे लगता है ये गलत होगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि नैरेटिव तो इनके हाथ में है ही। अभी भी आप कोई भी स्ट्रेंजर ग्रुप में आप बैठ जाएं, आपको थोड़ा डिफेंसिव होकर ही बात करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ उन्हीं के हिसाब से ऑलरेडी सेट है। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, आपको डिफेंसिव होके ही अपनी बात करनी होगी, और जैसे ही आप अग्रेसिव होगे तब आप इंटॉलरेंट हो जाओगे, तब आप फासिस्ट करार दिए जाओगे। तो इसलिए मुझे लगता है इग्नोर तो नहीं कर सकते। ये जो I'll carry forward his point, तो ये जो अटैक है ऑन इंडिविजुअल्स दैट इज़ वेरी सिस्टमैटिक। सो फर्स्ट they'll isolate you,
वेदर यू आर वर्किंग इन मेन स्ट्रीम मीडिया या आप मेरे जैसे इंडिपेंडेंट राइटर हो जो अपना अपना खुद कर रहे हो, तो द फर्स्ट स्ट्रैटेजी ऑफ द अदर साइड इज़ टू आइसोलेट यू, मतलब आपका सुनेंगे नहीं. द सेकेंड आइडियोलॉजी इज़ टू डेमोनाइज यू. सो दे विल गिव यू नेम्स लाइक यू आर अ संघी, यू आर अ बिगट, यू आर हेट फील्ड, यू आर दिस. वो जो आप कह रहे हैं, जो आपका जो पोजीशन है उसके बारे में कभी कमेंट नहीं करेंगे. आपने जो बोला है उसके बारे में कभी कमेंट नहीं करेंगे. वो आपके ऊपर कमेंट करेंगे. जैसे मुझे कई बार पहले बोला जाता कि यू आर अ ट्रोल, यू आर अ पेड बीजेपी IT सेल, वॉट एवर दैट मीन्स, यू नो, थिंग्स लाइक दैट. एंड द लास्ट वन इज दे विल डेमोनाइज यू. Even if you try to make sense, or even if the questions that you are putting forth are correct and they are data baked, they will not talk about the questions. They will label you something bad like fascist or something like that, and then they will completely negate your whole position. जैसे काठुआ के बारे में अगर आप सुने, काठुआ का जो इशू जो चल रहा था, तब मैंने पूना में पोस्टर्स देखे थे, ह्यूज पोस्टर्स ऑन सिग्नल्स विच सेड दैट अगर इंडिया में शरिया लगा होता तो ये चीज़ होती ही नहीं. किसने लगाए थे पोस्टर्स किसी को मालूम नहीं, नीचे किसी का नाम नहीं है, बट एट एवरी सिग्नल देयर वर ह्यूज पोस्टर्स लाइक दैट. सो ऑब्वियसली समबडी पुट मनी देयर. एंड अभी उसके बारे में जब जी टीवी ने वो एक्सपोजे किया, जो वो लड़का था जिसको अरेस्ट किया था, कि वो उस समय था, वो था ही नहीं, वो ATM में कहीं तो मेरठ में पैसे निकाल रहा था, ये जब स्टोरी जी न्यूज़ ने दी, तो उस न्यूज़ के बारे में भी आप अगर बोलें, सो द ओनली थिंग दे वुड से इज, ओ यू आर सपोर्टिंग रेपिस्ट. तब वो इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी वो सब नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट इज़ वन नैरेटिव दैट दे वांट टू पुट फॉरवर्ड. एंड because it is such a bad charge, nobody wants to be told on his face that you are supporting rapist. Okay, आप कितने भी ब्रेव हों, जब आपके सामने आप कुछ भी बोलें तो सामने वाला अगर ये चीज़ फेंक देता है कि आप तो रेपिस्ट को सपोर्ट करते हो, तो आप बोलेंगे नहीं. जैसे मेरे सोसाइटी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उन्हीं दिनों की बात है ये, तो मेरे सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में 11 बजे एक व्हाट्सएप आया. उस व्हाट्सएप में ये लिखा था कि मोदी जी, जब तक आप कठुआ के रेपिस्ट को सजाए मौत नहीं देते तब तक हम आपको वोट नहीं करेंगे, और समथिंग लाइक दैट. तो 11 बजे आया, मैं किसी सेमिनार में थी तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाई. तो 11 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक उस मैसेज पे किसी ने कुछ नहीं बोला. और मेरे सोसाइटी के ग्रुप में 80% लोग आर प्रो हिंदू, प्रो बीजेपी सपोर्टर्स. ओके, सो 4 बजे जब मैं सेमिनार से फ्री हो गई, तो उसके बाद मैंने उस मैसेज को रिप्लाई लिखा कि पहली बात तो ये है कि आई एम परफेक्टली श्योर कि जिस आदमी ने ये लिखा है उस आदमी ने ज़िंदगी में ना कभी मोदी को वोट किया होगा ना वो करेगा. दूसरी बात, ये मोदी के पावर में नहीं है किसी को सजाए मौत देना. दिस इज़ अ कंट्री दैट हैज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड द लॉज हैव बीन चेंज्ड सो दैट जुवेनाइल रेपिस्ट कैन गेट अ डेथ सेंटेंस नाउ. दैट इज़ द थिंग दैट द गवर्नमेंट हैज़ डन, बट इट हैज़ टू फॉलो अ ड्यू प्रोसेस. और जो सज़ा होगी वो जज देगा, वो मोदी नहीं दे सकता. दीज आर ऑल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. उसके बाद जब वो मैंने व्हाट्सएप पे डाला, उसके बाद 5 मिनट में धड़ाधड़ लोग बोलने लगे मेरे फेवर में कि शी इज़ राइट, दिस इज़ नॉट मोदीज जॉब, दिस इज़ द जुडिशरीज जॉब, ये वो. तो ये सारे लोग, उन्होंने वो मैसेज पढ़ा था, उनको भी यही लगता था, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता था, बिकॉज दे डिडंट वांट टू बी टोल्ड दैट ओ यू आर सपोर्टिंग रेपिस्ट. सो दे वर वेटिंग फॉर दैट वन पर्सन हु वुड टेक द फर्स्ट स्टेप एंड से कि हाँ, आई विल टेक द स्टैंड. देन दे ऑल स्टार्टेड जॉइनिंग. And we know that the fake narrative, and that is why that Z News के expose की वजह से वो लड़का बेचारा छूट गया. Otherwise he was an innocent person who would have been incarcerated. ऐसी बहुत सारी जो demonization होती है वो बहुत systematically की जाती हैं और आपकी reputation पे, आपकी credibility पे attack होता है. एक ये, और वहाँ पे मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट कुछ ऐसे हैं जिनके टेप्स हैं जो पॉलिटिकली लॉबिंग करते हुए पाए. मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बट ऑल द इंफॉर्मेशन इज देयर. This same journalist who was told, publicly castigated for her 26/11 coverage because she gave away the information of our forces, and that is why the terrorists could target them. किसी भी दुनिया के देश में एक जर्नलिस्ट ने ऐसे किया होता तो उसकी करियर ख़त्म हो चुकी होती. अब तक उसको कोई बार्चपोल से भी हाथ नहीं लगा था. वो जर्नलिस्ट अभी भी हमको ज्ञान देती है ट्विटर पे और तिरंगा टीवी पे और न जाने उसके कौन से शो पे कि इंटेग्रिटी क्या होती है, एथिक्स क्या होती है. जो खुद दलाल है,
And how come their credibility is not affected? Sagarika Ghosh has lied on Twitter multiple times. She has been caught and she has not even apologized or deleted her tweets. Even her husband has lied. But she still gets to position herself as a neutral journalist. How? That is my question. Why is her credibility not questioned? Yes, fair enough. I have no idea which journalist you were talking about. I think now the time is there for us to take a few questions. I just wanted to add very one more- briefly because we're running out. quick अब मुझे मालूम नहीं है कि ये हमारी प्रॉब्लम है या हमारी जो सभ्यता है उसकी महानता है कि इन लोगों के लेवल पे गिरने के लिए हम कभी भी तैयार नहीं होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा सब्सटेंशिएट करूंगा। शेफाली राहुल दोनों को मैं जानता हूं पर्सनली पिछले 2-3 सालों से। ट्विटर पे इन लोगों के जो इन्फेंट्स जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन तक को टारगेट किया। राहुल की बेटी जो कि किसी भी पिता के लिए, मेरी बेटियां मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी हैं, उनकी प्रिवेसी को ब्रीच करने तक की हरकतें ये लोग करते हैं। किसी भी हद तक ये लोग गिर सकते हैं ये लोग, और उस जगह पर शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं है वहाँ तक जाना। आज ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उसका रीज़न है इन्होंने बहुत बहुत सारे टफ टाइम्स देखे हैं। अगर मुझे मालूम है आपके परिवार और आप लोगों के ऊपर जो फिजिकल एक जो सिक्योरिटी का एक जो हमेशा जो डर रहता है, मुझे नहीं मालूम है वो किस तरह से आप लोग सह रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, बट आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू। ये आसान काम नहीं है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मतलब हमारे देश के अंदर रहकर देश के बारे में बोलने वाले लोग, ये लोग असुरक्षित हैं। सो आई अग्री कि और बाकी जो दलाल जर्नलिस्ट हैं वो अपने मास्टर से सीख रहे हैं। आज तक यूके ने भारत पे जो 200 साल तक जो अत्याचार करे, जलियांवाला बाग जो कांड था, बंगाल का जो फेमिनिन था, उसके लिए आज तक माफ़ी नहीं मांगी है। तो ये तो फिर दलाल हैं, ये माफ़ी कैसे मांग सकते हैं? अपने मास्टर से ही काम आगे बढ़ा रहे हैं। या प्लीज सॉरी, किसके लिए क्वेश्चन आप ये आइडेंटिफाई करें। अच्छा, कौन से? अभिनव के लिए। सर, जैसा कि आपने कहा था कि अगर कोई यूएसए, अमेरिका, ब्रिटिश, पाकिस्तान, चाइना जैसा कोई पड़ोसी अगर हमारे घर के बारे में कोई कमेंट करता है, एक पड़ोसी औरत की तरह, पास वाली आंटी की तरह कमेंट करता है, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं कि वो जो नैरेटिव बना रहा है वो इग्नोर करने लायक है, हम अपने घर में उसको लेकर नहीं आ सकते। परंतु आपका उस बारे में क्या कहना है कि जब हमारे घर की मौसी बुआ के रूप में बेटा एजुकेशन सिस्टम जब हमको पीएससी यूपीएससी की तैयारी करवाता है, जब हम लॉ को पढ़ते हैं, आर्ट्स को पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, तो हमको ये बताया जाता है कि अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो शायद हम खाना नहीं जानते, अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो शायद हम ये कपड़े पहनना नहीं जानते, और शायद ब्रिटिशर्स नहीं आते, पर्टिनेंट सवाल है आपका बहुत, शायद ब्रिटिशर्स नहीं आते तो शायद हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। तो क्या ये नेरेटिव ऐसे इग्नोर नहीं किया जा सकता कि शायद ये सिस्टम यहाँ पर नहीं होता, शायद ये दीवार पर गोबर लिपा होता, परंतु विचार तो शायद हमारे वही होते ना। तो इस नेरेटिव को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? मौसी बुआ के नेरेटिव्स को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? आई थिंक जो आपने सवाल पूछा है वो आज श्री कपिल जी ने भी काफी इस पे बात करी है, बट ब्रीफली, वेरी ब्रीफली। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब हम लोग सब मानते हैं इस बात को कि इस्टेब्लिशमेंट जो है आज वो राष्ट्रवाद जो लोग हैं, राष्ट्रवादी जो लोग हैं, उन लोगों के हाथ में नहीं है। एकेडमिक जो एरिया है वो इस्टेब्लिशमेंट का ही पार्ट है। अगेन दोस्त, ये एक छोटी लड़ाई नहीं है, 20, 25, 30 साल और लगेंगे, लेकिन भारत में आएगा वो समय जब चोला साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, ये सिर्फ 200 साल के मुगल साम्राज्य के से शुरू होकर हिस्ट्री खत्म हो जाती है। ये नहीं चलेगा, अब ये बदलेगा। और बहुत शर्म की बात है, आज अभी कुछ समय पहले मैंने मेरा एक दोस्त है विक्रम संपत, बहुत बड़े ऑथर भी हैं, उसको फ़ोन करके मैंने पूछा, यार विक्रम मुझे इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, कोई बुक है क्या? वो बोलते हैं कोई बुक नहीं बता सकता हूँ यार। सो ये सब चेंज होगा, ये होगा, बट टाइम लगेगा। क्षमा चाहता हूँ, मुझे निकलना होगा वरना मेरी फ्लाइट मिस आएगी, लेकिन सेशन जारी रहेगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट शिफाली जी टू प्लीज मॉडरेट द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। बता दीजिए, टफ अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं आंसर कर दूंगा। एक्चुअली सर नहीं, आई डोंट नीड द माइक। आनंद जी, जैसा आपने बताया कि सोशल मीडिया नैरेटिव का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो मैं बस इतना सा बताना चाह रहा हूँ, एक सॉल्यूशन था हमारे पास, हमने ही उसको खत्म कर दिया। एक केस हुआ था कुछ साल पहले श्रेया
चैलेंज कर रहा है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इस ग्राउंड पे हटा दिया गया। उसके बाद की जो तथ्य है मैं आपको थोड़ा सा एक टाइम लेके बता रहा हूँ। मॉब लिंचिंग बढ़ गई, कम्युनल वायलेंस बढ़ गया, राइट्स बढ़ गए, साइबर बुलिंग, साइबर स्पेस रिलेटेड क्राइम बढ़ गए, डिफेमेशन बढ़ गया, हेट्रेड अगेंस्ट नेशन एंड हेट्रेड क्राइम्स बढ़ गए, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट एंड न्यूडिटी इज ऑन सोशल मीडिया। डोंट यू थिंक इट मस्ट बी गॉट बैक? डोंट यू थिंक वी इंडियंस हैव टर्न इनटू अ रोमन मॉब? ये मेरा सवाल है। Just to briefly, and others can also answer that, but I'll miss the flight and I'll come to your home to sleep tonight then. फिर आप blame मत करना. But मैं यही कहना चाहता हूँ, I am totally, and I was, if you remember, most of the right wing, if not all of the right wing, were against the Section 66. And I am sure, I am hopeful that they remain so. And I think I'll pass on the mic and I'll say it's been a great pleasure and thank you so much for having me here. Thank you so much. नहीं, मैं पर्सनली मैं नहीं मानता, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ऐसे लॉज हैं जिससे ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। अभी भी नहीं आईटी एक्ट क्या आपका, आईपीसी में लोग जेल जाते हैं ट्वीट करने के लिए, फेसबुक पे लिखने के लिए, वो आईटी एक्ट में ज़रूरी थोड़ी आते हैं, आईपीसी के अंदर भी जाते हैं। 295 है, 153A है, हमारे पास ऑलरेडी इतने लॉज हैं स्पीच को कर्ब करने के लिए कि हमें कोई नया लॉ पर्सनली मैं तो नहीं मानता। I agree with Rahul. मेरा क्वेश्चन शेफाली मैम से है। मैं प्रखरादित्य द्विवेदी माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय यहीं भोपाल से एमजे 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मैम, पिछले कुछ दिनों पहले 15 अगस्त के 2-3 दिन बाद मैंने अपने वीसी के बारे में, यहाँ पे जैसे सरकार चेंज हुई तो जो हमारे पहले के वीसी थे उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा, और वो सब लोग जानते हैं क्यों देना पड़ा। जो नए वीसी आते हैं वो विश्वविद्यालय में अचानक से कुछ ऐसे परिवर्तन करते हैं कि किताबें कई सारी लाइब्रेरी से गायब हो जाती हैं, कई सारे टीचरों को इधर से उधर कर दिया जाता है, कुछ बाहर से प्रोफेसरों को बुलाया जाता है, और फ्रेश एडमिशन के लिए कुछ विशेष लोगों को, पहले इंटरव्यू नहीं होते हैं, इंटरव्यू होना अच्छी बात है, लेकिन कुछ विशेष लोगों को बुलाया जाता है और उनसे विशेष बच्चों को विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाने की कार्रवाई की जाती है। उनके 15 अगस्त के भाषण पे मैंने यूट्यूब पे देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य। सवाल क्या है? मैं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ये इसको बताना ज़रूरी था। उनके 15 अगस्त के भाषण पे मैंने एक फेसबुक पोस्ट लिखा, मैंने सिर्फ इस नाते क्योंकि वो बहुत सारे चीज़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे। जैसे कि उन्होंने द्रविडियन लोगों को हड़प्पाई करार दिया और उन्होंने स्वतंत्रता का जिक्र किया, जिसमें केवल नेहरू को शामिल किया, और वो हमें अगले दिन बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम 24 साल के हो और जिस चीज़ को तुम फॉलो कर रहे हो, तुम जब 48 साल के होगे तो तुमको पता चलेगा लोगों ने तुम्हारा यूज़ कर दिया, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैम, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या संघी कहलाना या राइट विंग का होना आज के समय गाली कैसे हो गई, गाली क्यों हो गई? आज के समय में ये तो पिछले 70 साल से ही, हमेशा से ही थी। अभी तो माहौल चेंज हो रहा है एक्चुअली। It is a term, that is why I told you, no, कि their first reaction is the minute you start asking uncomfortable questions, जब आपके प्रश्न में तथ्य उनको दिखने लगा तो उनकी फर्स्ट रिएक्शन होती है आपको डिस्क्रेडिट करना और आपको गाली देना। क्या गाली? फाशिस्ट, संघी, हिंदुत्व, सुप्रीमेसिस्ट, व्हाटएवर इट इज। ये तो तरीका है जो पिछले 70 साल से चला आ रहा है। इट इज़ नाउ दैट इट इज़ चेंजिंग। बट जो आपका जो सवाल है, सी द कांग्रेस अंडरस्टैंड्स द पावर ऑफ द नैरेटिव, विच इज़ वाई यहाँ पे गवर्नमेंट बदलने के 1 महीने में ये सारे चेंजेस हो गए, जो अनफॉर्चुनेटली बीजेपी करता नहीं है। क्यों नहीं करता, आई डोंट नो। बट ये राजस्थान में भी हुआ। राजस्थान में गवर्नमेंट चेंज हो गई, महाराणा प्रताप से महा हट गया। वो समझते हैं पावर नैरेटिव की, क्योंकि वो 70 साल से कंट्रोल करते आ रहे हैं नैरेटिव। दे अंडरस्टैंड दैट हाउ डू यू से यूज प्रोपेगेंडा। नैरेटिव की बात कर रही हूँ जर्नलिज्म की स्टूडेंट्स में। मैं 22 साल पहले मैं पुणे यूनिवर्सिटी में मैंने मास कॉम किया, तो हमको मूवीज़ दिखाए जाते थे। तो हमको पहली मूवी क्या दिखाई गई
राम के नाम, वो आनंद पटवर्धन की एक बहुत बकवास मूवी है राम जन्मभूमि पे. इतनी घटिया और इतनी वन साइडेड मूवी मैंने आज तक नहीं देखी. इट्स फुल ऑफ लाइज. बट दैट वॉज द मूवी दैट वॉज शोन टू अस. आनंद पटवर्धन को लाया गया. हम सब लोग 21-22 साल के थे. कुछ लोगों को तो पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन थी नहीं, अवेयरनेस थी नहीं. दैट वॉज द ओनली मूवी वी हैड सीन ऑन द इशू. सो इट इज़ वेरी ईजी टू गेट कैरिड अवे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन योर माइंड इज स्टिल impressionable. And we were all mass comm students, so we were going to graduate and we were going to join channels, newspapers or whatever. So those 2 years they started working on our minds. इसको 22 साल हो गए इस चीज़ को. अभी मेरे गांव की एक लड़की बैंगलोर में गई है जर्नलिज्म करने के लिए. उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज दिया कि हमारा कॉलेज में हमारे क्लास में पहला स्क्रीनिंग हुआ. मैंने कहा अच्छा, कौन सी मूवी दिखाई? तो बोली राम के नाम. 22 years, a college in Bangalore, a college in Pune. They're still showing the same movies. इसके बाद राम जन्मभूमि पे इतना सब आर्कियोलॉजिकल उत्खनन हुआ है, वहाँ नए नए सब ये आए हैं, प्रूफ्स आए हैं, लेकिन नथिंग ऑफ दैट इज इंक्लूडेड इन द डिस्कशन. इट्स द सेम घिसा पिटा नैरेटिव दैट इज बीइंग फेड टू 21 or 22-year-old children, and most of the people they either come with a politically neutral point of view or they just don't care, so their minds are easy to mold. जिनके हैं व्यूज, जिनको कुछ मालूम है, वो क्लास में 1 या 2 होंगे और बाकी के 20 लोग अगर बहुत जोर से आपके अगेंस्ट बोलेंगे तो एक स्पाइरल ऑफ साइलेंस नाम की एक कॉन्सेप्ट होती है कम्युनिकेशन में. तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई सुनेगा नहीं, तो आप बोलेंगे नहीं, आप अंदर ही अंदर रखेंगे और आपकी आवाज़ दबती जाएगी. विच इज़ वॉट इज़ बीइंग डन इन मीडिया स्कूल्स एंड ह्यूमैनिटी स्कूल्स ऑल ओवर, इवन नाउ इन इंडिया, नॉट जस्ट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड एक्चुअली. जय हिंद मैम, मेरा नाम अस्मा खान है और मैं गवर्नमेंट एमबीएम भोपाल से मिलिट्री साइंस एमएससी कर रही हूँ. मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि हम राइट विंग और लेफ्ट विंग पे बात कर रहे थे स्टार्टिंग में किसी नैरेटिव को सेट करने के लिए. बीइंग अ नॉर्मल सिटीज़न, मतलब मैं सिर्फ एक सिटीज़न हूँ और मेरी शायद कोई आइडियोलॉजी ना हो, मतलब या है भी तो दूर से देखने पे इतना समझ में आता है कि राइट विंग वो है जो ऐसा कहता है कि मेरा ये परसेप्शन है पर्सनली कि राइट विंग वो है जो कहता है देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, और लेफ्ट विंग वो है जो कहता है देश में सब कुछ खराब है. तो मैं ये दोनों चीज़ें नहीं मानती. फेयर इनफ. मैं ये दोनों चीज़ें नहीं मानती. मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गलत है तो बहुत कुछ सही भी है. तो इन दैट केस बीइंग अ नॉर्मल सिटीज़न, मैं ये कैसे जस्टिफाई करूँ या कैसे पहचानूँ कि जो न्यूज़ मुझे दिखाई जा रही है या जो नैरेटिव मेरे सामने रखा जा रहा है, कौन सा फॉल्स कौन सा राइट. मतलब आप अपना पर्सनल बता दो कि मैं ऐसा समझती हूँ कि ये जी न्यूज़ या जो बीबीसी है वो गलत कर रहा है, जी न्यूज़ है जो बीजेपी का है, या एनडीटीवी किसी पर्टिकुलर पार्टी का है. ये तो सब एकदम मैसअप हो गया हमारे सामने. तो अगर हम बहुत कुछ नहीं पढ़ते हैं या किसी आइडियोलॉजी को नहीं मानते हैं, तो देश के नागरिक होने के नाते सही और गलत में फ़र्क हम कैसे जानें? फिर हमारे पास सही चीज़ पहुँचनी चाहिए तो वो कैसे पहुँचे? बहुत 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 अच्छा सवाल है. एंड यू हैव बेसिकली elucidated the crux of the problem कि अगर आप न्यूट्रल हैं, आप सिर्फ न्यूज़ जानना चाहती हैं, तो आप कहाँ से सोर्स से अनबायस्ड न्यूज़ आपको मिलेगा. ऐसा मैं कोई आपको एक नाम नहीं बता सकती अनफॉर्चुनेटली जो मैं बोलूँ कि आप एक फलाना न्यूज़पेपर पढ़ो या एक फलाना न्यूज़ चैनल देखो, उसमें आपको सिर्फ अनबायस्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी. ऐसा कुछ है ही नहीं. तो आपको अपनी सत्सत विवेक बुद्धि, अपना कॉन्शियंस यूज़ करके वही न्यूज़ 3-4 अलग अलग सोर्सेज से चेक करके फिर उसके बाद आपको अपनी ओपिनियन बनानी होगी. यूजुअली ऐसे होता है कि एक नैरेटिव बन जाता है मेन स्ट्रीम में, उसके बाद सोशल मीडिया उसको काउंटर करता है, और कभी कभी बहुत आसान होता है कि यू फ्रेम योर ओपिनियन जस्ट बेस्ड ऑन हाफ इन्फॉर्मेशन. पर आपको थोड़ा सा सोच के, अगर सोशल मीडिया पे अगर आपको व्यक्त होना है या सोर्सेज भी करने हैं, तो आपको 2-3 बार अलग अलग सोर्सेज से चेक करके आप कुछ हद तक उसको कंट्रोल कर सकती हैं, पूरे हद तक कंट्रोल नहीं कर सकती. बिकॉज अनफॉर्चुनेटली नॉट अ सिंगल मीडिया सोर्स इन इंडिया टुडे कैन बी कॉल्ड फुल्ली अनबायस्ड. दैट इज ट्रू. नहीं, मेरा जवाब कोई बहुत अलग नहीं होगा. सबसे पहले तो वो एक्चुअली मुझे डेफिनेशन अच्छा लगा. एक बार मैंने भी ये कहा था कि एक सच्चाई वही है कि राइट विंग के हिसाब से कुछ गलत नहीं है और लेफ्ट विंग के हिसाब से कुछ सही नहीं है. तो और जाहिर सी बात है, मतलब ऐसा परसेप्शन ऑब्वियसली हर जगह अलग अलग किस्म के लोग होते हैं. लेकिन जो सवाल था कि सच्चाई, अभी यूँ कहें कि जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है,
ये जो सत्य वाली जो बात है वो उसका भी डेफिनेशन इवॉल्व होता जा रहा है। वो अब इतना आसान नहीं रहा पहले जैसा। पहले एक तरीके से हमने इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बनाए थे, कुछ बन गए थे। मीडिया जो एक इंस्टीट्यूशन है, जो बाकी हम डेमोक्रेसी के जो 3 इंस्टीट्यूशन कहते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये सारे बनाए हुए हैं। इनके अकाउंटेबिलिटी है, कैसे वहाँ कोई जाएगा, रोल्स वगैरह हैं, रूल्स हैं। मीडिया का ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो अपने आप बन गया। ऐसा कोई जो इसकी अकाउंटेबिलिटी है वही आपकी भी है। एक जर्नलिस्ट और आप में वो जो बोल रहा है और आप जो बोल रहा है, दोनों बराबर की बात है, उसके लिए कोई अलग लॉ नहीं है। तो मीडिया एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसको हमने पता नहीं क्यों, लेकिन डेमोक्रेसी में वो ज़रूरी भी था, उसको बाकी तीनों के सामने खड़ा कर दिया। उसको हमेशा हर जगह, हर स्कूल में, हर जगह पढ़ाया जाता है 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें एक मीडिया होता है। तो खासकर मैं जुडिशरी से उसको कंपेयर करना चाहूँगा कि हमने उसको ऑलमोस्ट उसी तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया था कि मीडिया सच दिखाता है, मीडिया इज़ द जज, और वो जो बोल रहा है वो वर्डिक्ट है, हम उसको मान लें। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है अब, और ये सच्चाई कभी नहीं थी, वो एक छलावा था जिसमें हम सब लोग रहे हैं। अभी इस वक्त मैं खुद मीडिया का हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं तो मानता हूँ, और लेफ्ट से मैं इस बात में मैं कहूँगा कि हम लोग अलग हैं, कि हम मानते हैं कि हम बायस्ड हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा पोर्टल राइट लीनिंग है। तो अभी ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि आप अपने आप को जज बनाओ। आप मीडिया को एडवोकेट्स की तरह देखो और जज आप बनो। पहले था कि मीडिया जज था। How can I answer that question? वही तो मैं बोल रही हूँ ना, एक ऐसा सोल्यूशन नहीं है, सिंपल सोल्यूशन नहीं है। मैं आपको ये नहीं बता सकती कि आप ये चैनल देखो, आपको पूरी अनबायस्ड न्यूज़ मिल जाएगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। बट द थिंग इज, राइट साइड पे जो, राइट साइड मतलब नॉन लेफ्ट साइड पे जो लोग हैं, वो एटलीस्ट ओपनली बोलते तो हैं कि हम लोग बायस्ड हैं। हर कोई बायस्ड है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अपने आइडियोलॉजिकल बायसेस हैं नहीं। अगर कोई ऐसा बोलता है आपको तो वो गलत है। कुछ लोग ओपनली एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, दैट इज द थिंग। बट अगर आपको सच या क्या है वो पता करना है, वो एज ही सेड, वो आपको ही जज बनना पड़ेगा। वो उसमें मतलब कोई आपको नहीं बता सकता कि ये यही देखो कि वत्स यही रास्ता है, इसी रास्ते पे चलते रहो, आपको मोक्ष मिल जाएगा। वो नहीं है पॉसिबल। मेरा क्वेश्चन अभिनव सर से है। सर एक करके, प्लीज। राइट विंग और नेशनलिज्म अलग अलग कैसे? देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। राइट विंग की जो ओरिजिनल जो डेफिनेशन है, जो आप माखनलाल से हैं क्या अभी? नो, ओके। सो अनफॉर्चुनेटली जो बताई जा रही है वो बेस किया है इटली में मुसोलिनी, जर्मनी में हिटलर, उन सारे से। वो इसलिए गलत है क्योंकि हमारी जो सभ्यता है, मैं अभी थोड़ी देर पहले ग्रुप डिस्कशन में भी इसके बारे में बात करी थी। अगर अंग्रेज़ों की खुद की माने तो वो खुद बोलते हैं 3000 बिफोर क्राइस्ट, 4-5 हज़ार साल पुरानी सभ्यता वो खुद मानते हैं। मैं मानता हूँ कि ये चौथा युग चल रहा है, तो कम से कम 20-22 हज़ार साल पुरानी सभ्यता है हमारी। इसमें टॉलरेंस हमेशा से है। जो टॉलरेंट है, जिसके मन में दूसरों के लिए सम्मान है, जीव जंतु तक के लिए सम्मान है, वो फैसिस्ट या हिटलर से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। इसलिए कम्युनिस्ट लेफ्ट विंग है क्योंकि वो खुद मानते हैं। राष्ट्रवादी जो लोग हैं, राष्ट्रवादी जो लोग यहाँ हैं, वो सब टॉलरेंट हैं, तो इनको लिबरल कहना ही करेक्ट है। इसीलिए मैं अलग मानता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था सर, एक जस्ट ए क्विक वन बिफोर दैट। अभी माखनलाल से आपने बताया कि किस तरह से नया नैरेटिव सेट हो रहा है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हम लोगों ने खुद ने, जब हम लोग पढ़ रहे थे, शिफाली ने जैसा बताया, हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया इन सारी चीज़ों पे। अब लेकिन इसको हम कंटिन्यू नहीं होने देंगे। मैं नहीं जानता हूँ आपका वीसी कौन है, लेकिन अगर वो कांग्रेसी एजेंट है तो मैं आपको यहाँ स्टेज पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में ये बोल रहा हूँ,
आपकी डिग्री, आपके मार्क्स, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा ईमेल एड्रेस आशुतोष के पास है, प्लीज़ सेंड योर CV। कल आकर इंटरव्यू दीजिए। आपके मार्क्स एक तरफ गए, अगर इंटीग्रिटी है, अगर राष्ट्र के लिए मन में प्यार है, देश की सेना के लिए अगर प्यार है, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माय नेशन में आपका स्वागत है। और मैं सिर्फ किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको अपने काम में लगन है, अगर आप मेहनत करते हो, तो सिर्फ इस वजह से कि देश से प्रेम है, अपने धर्म से प्रेम है, अपनी सभ्यता से प्रेम है, अब ये डिस्क्रिमिनेशन और आगे नहीं चलने देंगे। एंड आई एम प्रिटी श्योर, मैं राहुल के बिहाफ पे भी कह सकता हूँ, माय नेशन और ऑप इंडिया मिलकर हम सपोर्ट करेंगे आप लोगों को। सर मेरा एक क्वेश्चन था। किसके पास? इधर। अच्छा, ओके। अच्छा। मैं केदार शुक्ला हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और MBA स्टूडेंट फ्रॉम IIM अहमदाबाद। मेरा एक मानना है कि मीडिया दो तरह की चीज़ों को दो तरह से दिखाता है, या तो सही दिखाता है या तो झूठ दिखाता है, या तो फिर सही को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है और झूठ को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। खैर ये लोगों के नॉलेज पे डिपेंड करता है, वो इसको क्रैक कर लेते हैं। जैसे मंदी के नाम पे जितना रोया जा रहा है, तो मैं मेरे प्रोफेशन के हिसाब से समझ सकता हूँ कि इतना बुरा है नहीं जितना रो रहे हैं। अभी 130 CR की पॉपुलेशन में से करीब 5.2 CR लोगों ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरे, उसमें से करीब 30% लोगों ने टैक्स भरे हैं। तो 5.2 CR का 30% निकाल के हम देख सकते हैं, तो हम खुद सोच सकते हैं कि क्या सिर्फ इतने लोग ही हैं जो टैक्स पेयर हो सकते हैं? नहीं, हम मंदी किसी के घर में नहीं है, पर देश के नाम पर रोना मचा हुआ है, तो वो अलग चीज़ है। नॉलेज से हम इसको क्रैक कर सकते हैं। पर मेरा क्वेश्चन दूसरा है, जो शायद कहीं सोच नहीं पा रहे होंगे लोग। स्कूल्स में मैंने एक छोटे बच्चे की बुक में देखा, ABCD पढ़ता था वो। A फॉर एप्पल के बगल में वो सेव बना रहता है, B फॉर बॉल के बगल में गेंद बनी होती है, G फॉर जेंटलमैन के बगल में एक भाई साहब बने होते हैं जो सूट बूट में खड़े होते हैं। तो बच्चे के अंदर हम ये इमेज डालते हैं कि ये जो सूट बूट पहन के खड़ा है वो जेंटलमैन है, और तुम्हारे जो पिताजी हैं जो धोती कुर्ता पहनते हैं वो तो जेंटलमैन नहीं हो सकते। ये इमेज हम उनको बचपन से ही बोल रहे हैं। ये कहाँ से आया? कोई भी कंपनी रिक्रूटमेंट के लिए ऐड देती है कि बनाएं अपना सुनहरा करियर, तो सूट बूट पहन के लोग खड़े हुए थे। मतलब जो कुर्ता धोती में है, इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस में है, उसका करियर सुनहरा नहीं हो सकता। ये चीजें, ये मिथ कब टूटेगा? इस पर कोई ध्यान नहीं देता कि हम ऐसा चीज बना। हम खुद वेस्टर्न भेज रहे हैं लोगों को, हम खुद वेस्ट साइड भेज रहे हैं ना। हम सोच लोगों के वेस्टर्न बनाए जा रहे हैं, तो हम कितना भी ट्रेडिशनल हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे बात कर लें तो कैसे बिगड़ेगा? हमको लग भी रहा कि हम इस सिस्टम से पढ़ के हमको वही सूट बूट वाला बनना है। बहुत सही सवाल है। और ये जब पॉलिसी लेवल पे जब चेंज होगा तब होगा, उसका आंसर नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं इंडिविजुअल लेवल पे बोलती हूँ। जैसे मैं कॉन्शियसली साड़ियाँ पहनती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे बाकी के ड्रेस से नफरत है। टिल आई वाज 25 आई यूज्ड टू लिव इन जीन्स एंड टी-शर्ट्स, बट ये मेरी कॉन्शियस डिसीजन है साड़ी पहनने की। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरे बच्चों के स्कूल में मैं जाती हूँ पेरेंट टीचर्स मीटिंग में, तो 600 पेरेंट्स होते हैं, उनमें से मैं एक अकेली साड़ी पहन के आती हूँ, बाकी सारे या तो सलवार कमीज़ में या तो वेस्टर्न्स में आते हैं। तो मुझे एक पेरेंट ने पूछा कि आपको घर में रिप्रेस किया जाता है क्या, कि दे डोंट अलाउ यू टू वेयर एनीथिंग एल्स अदर देन द साड़ी? एंड आई वाज लाइक, हाउ डिड यू इवन थिंक ऑफ इट? मतलब मैं किसी भी एंगल से किसी को भी ऑप्रेस लगती हूँ क्या? प्लीज रेज योर हैंड्स। ये स्कूल के डिस्कशन में भी नहीं होना चाहिए। हाउ कैन समबडी आस्क मी एंड हाउ कैन समबडी कोरिलेट? सी दैट इज द पॉइंट, कि सिर्फ मैं साड़ी पहनती हूँ, इसका और ऑपरेशन का ये संबंध कोई कैसे लगा सकता है? उसके दिमाग में ये आया कैसे कि जस्ट बिकॉज आई एम वेयरिंग अ साड़ी आई मस्ट बी ऑप्रेस्ड बाय व्हाटएवर पेट्रियार्की? So that is the conscious decision that I have made, and my children tell me that you stand out, and I am very proud of you because you are different from every other parent, and that is a conscious choice that I have made. Some of you will become CEOs tomorrow. Some of you will become professionals in your own field. You start by changing. One day in a week you wear traditional clothing and go. Who's stopping you? आप अपने लेवल पे तो ये कर ही सकते हैं ना। कुछ स्टेट्स में, जैसे ओडिशा में, ये स्टेट लेवल पे होता है कि स्टेट ने बताया है लोगों को कि उनका हैंडलूम इंडस्ट्री बहुत पॉपुलर है और बहुत लोगों को रोज़गार देता है। तो स्टेट ने ये बताया है कि स्कूल में, टीचर्स में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में हफ्ते में एक दिन सारे लोग हैंडलूम पहनेंगे।
तो वो पहन के आते हैं. बट ये हम लोग इंडिविजुअली अपने लेवल पे क्यों नहीं करते? अगर हमको ये सच में अगर खटकता है कि हमारे दिमाग में हमारी सभ्यता, हमारे कपड़े, हमारा पोशाक, हमारी ट्रेडिशंस, इसके बारे में आदर होना चाहिए, तो हम लोग खुद अपने से क्यों नहीं शुरुआत करते? चैरिटी बिगिंस एट होम. सर, मेरा प्रश्न आपसे, सर से. सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, आपने अनुच्छेद 370 की बात करी कि अनुच्छेद 370 पर आपने वीडियो बनाया था, उसको व्यूज़ वगैरह नहीं मिले. तो मेरा प्रश्न जो है वो यह है कि अनुच्छेद 370 के हटने से जो कर्फ्यू लगा घाटी में, तो वहाँ पर क्लस्टर बम बिछा दिए जाते हैं आर्मी द्वारा. फिर जब वहाँ के बच्चे खेलने कूदने के लिए जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो जब वो क्लस्टर बम को फल समझ के उठा लेते हैं और वो क्लस्टर बम फट जाता है, तो ऐसे करीबन 100 बच्चों की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है. इंडियन मीडिया इस न्यूज़ को दबाती है और कोई भी इंडियन मीडिया पर यह न्यूज़ नहीं मिलती है. परंतु अब इसका विपरीत होता है कि फॉरेन मीडिया ये न्यूज़ को उछालती है. तो अब तो जाकर भारत के लोगों को पता चलता है कि इस तरीके की घटना जो है वो कश्मीर में घट रही है. तो इस तरीके की घटना को आप नैरेटिव बोलेंगे या समाज में सत्य को उजागर करना बोलेंगे मीडिया के द्वारा? 70 साल से हमने वहाँ पर पूरे भारत को एक तरफ कर दो, कश्मीर को एक तरफ रखते हैं. इतनी सब्सिडीज़ दी हैं वहाँ पर कि आप एक पैटर्न देखिएगा हमेशा से. मतलब, और मैं काफ़ी सारे कश्मीरी लोगों के साथ स्विट्ज़रलैंड में पढ़ा भी हूँ, मेरे साथ मेरे रिसर्चर वगैरह थे. तो मैं उनसे सिर्फ एक चीज़ पूछता था, भाई अगर तुम लोग एक्चुअली इतने ज़्यादा ऑप्रेस्ड हो, तो ये तुम लोगों के जो सारी जो स्टोन पेल्टिंग होती है, ये प्लेजेंट वेदर में क्यों करते हो? समर में ऐसा कैसा प्रोटेस्ट है यार कि सर्दियों के समय मतलब कैंप फायर, घर में बैठ के कहवा पी रहे हो आराम से, गर्मियाँ आई, थोड़ा मस्त बाहर निकलने का मौका निकला तो वहाँ पर स्टोन पेल्टिंग कर ली. आप देखिए ज़रा एक बार, अगर आप रिकॉर्ड करेंगे स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट, हमेशा प्लेजेंट वेदर में होते हैं. ये कैसा आक्रोश है? अभी 60 साल 70 साल बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से भाई बना के, अपना बंधु बना के, अपने परिवार बना के उनको गले से लगाया है. अब अगर कुछ लोग हैं वहाँ पे, मेजॉरिटी लोग आज भी भारत के साथ हैं, मेजॉरिटी लोग इस तरह के किसी इंसिडेंट में शामिल नहीं हैं, लेकिन जो कुछ अलगाववादी लोग हैं, अगर उनको ज़रूरत है थोड़े से अनुशासन देने की, तो वो करना बहुत ज़रूरी है. Would like to know what is the source of your information. I genuinely am curious. Is there a video? Is there any information? Don't tell me that Rana Ayub has tweeted this. I don't believe her. Is there a video? मैम, एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, जहाँ पर एक व्यक्ति था, मैं आपको मैं बताऊंगा. एक व्यक्ति वो कश्मीर की घाटी में चल रहा था और वो बता रहा था क्लस्टर बम उठा के कि देखिए क्लस्टर बम है और ये बच्चे हैं, ये इनको उठाकर एक दूसरे पर फेंक देते हैं समझ के. आपने बच्चा जो हॉस्पिटल में है, उसके माँ बाप की, इसकी वीडियो देखी है? वहाँ के जो रहवासी थे वही बता रहे थे कि यहाँ आपको कैसे मालूम वो वहाँ के रहवासी हैं? What is the proof that you have? What is the credibility of your source? You can't tell me that a YouTube video. I mean, I have not come across such information anywhere. आपको मैं वीडियो बताऊंगा, आप बता दीजिएगा. नहीं, आपने मुझे बता रहे कि एक आदमी क्लस्टर बम लेके उठा रहा है, बोल रहा है कि ऐसे फेंकते हैं. That doesn't mean anything. ये तो मैं अपने बैकयार्ड में उसको, मेरे बैकयार्ड में भी सिल्वर ओक्स के ट्रीज हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ. वो भी दिखता है कश्मीर के जैसा, एक्चुअली दिखता है सर. और एक बात, आप इनकी एक ये जो साड़ी है ना, दिस इज फ्रॉम कश्मीर. ओके, दिस नीडल वर्क फ्रॉम कश्मीर. आई जस्ट बॉट इट लास्ट वीक बिफोर आई केम हियर, एंड द पर्सन हु सोल्ड मी इज अ वेरी ओल्ड आर्टिजन. तो उनके यहाँ पहले जैसी क्वालिटी अब नहीं मिलती. तो मैंने उनको पूछा कि पहले जैसी एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी क्यों नहीं मिलती. He was an old Kashmiri gentleman. He told me that Kashmir में embroidery used to be done traditionally only by men. Traditionally, and even if you can Google it, you can find it. He said अभी सब लोग काम नहीं करना चाहते because they get paid 500 rupees to pelt stones. Whether he was telling the truth or not, I don't know. But this is the information that he gave me. He said that is why we don't get
good quality workmanship. मेरा क्वेश्चन राहुल सर से है। सर मतलब पर्सनली मेरा ये मानना है कि एक पत्रकार की सबसे बड़ी भूमिका ये रहती है कि वो जो सही खबर है वो दिखाए, ना पक्ष में दिखाए उसके, ना विपक्ष में दिखाए। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैं राइट लेता हूँ, या फिर अपन किसी भी न्यूज़ चैनल की बात कर लेते हैं, तो ये मतलब जो उनका पत्रकारिता का जो फील्ड है, क्या वो जस्टिफाई कर पाते उस चीज़ को? अगर वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को चूज़ कर लेते हैं कि वो राइट वाले हैं या फिर लेफ्ट वाले हैं, तो आप पत्रकारिता के जो फील्ड है उससे जस्टिफिकेशन कर पा रहे हैं कि हाँ ये सही है? नहीं, आपने जो बात कही वो आइडियल चीज़ है, और साइंस में आइडियल नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, और साइंस से ज़्यादा हकीकत के नज़दीक लगता है मुझे तो। और दूसरा जो ट्रुथ की आप बात कर रहे हो, मैं एक बात बताता हूँ। मतलब हम तो साफ बोलते हैं ना कि हम बायस्ड हैं, लेकिन बायस्ड का मतलब हम ये थोड़ी कह देंगे कि अपने रिपोर्ट में कि यहाँ पे शंकर जी की मूर्ति थी। ये तो फैक्ट है, ये गणेश जी की मूर्ति है तो गणेश जी की मूर्ति है। बायस आता है आप चीज़ों को देखते कैसे हो। जैसे 6 और 9 वाली जो बात हम करते हैं कि इधर से हम देख रहे हैं तो वो 6 भी है 9 भी है, दोनों ही फैक्ट है। बायस वहाँ पे आता है। अगर मैं ये रिपोर्ट कर दूं कि यहाँ पे शंकर जी की मूर्ति थी तो वो तो सरासर फेक न्यूज़ है, वो बायस की बात नहीं है। तो ट्रुथ जो है कई बार बायस से भी वो होता है। अभी तक आप जो मान के चल रहे थे ट्रुथ क्या है, मैं आपको एक बात ये दिखा दूं कि खासकर जो ट्रेडिशनली लेफ्ट की तरफ जो लोग झुकाव रखते हैं उनके लिए जो ट्रुथ क्या है। द वायर का नाम सुना ही होगा, वो लेफ्ट लीनिंग है। उनकी एक खुद की रिपोर्टर थी, मैं दमयंती या कुछ नाम था, या ये हुआ है 2018 जनवरी में। तो अभी मैं पूरा तो पढ़ के पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा। तो वो लेडी रिपोर्टर थी, अहमदाबाद में कुछ रिपोर्ट करी थी या जिग्नेश मेवानी वगैरह के बारे में। वहाँ पे कोई दलित सो कॉल्ड जिग्नेश मेवानी जैसे अपने आप को दलित लीडर बोलते हैं, तो वैसे ही उनका कोई जिग्नेश मेवानी का कोई एड या हो सकता है सिर्फ सपोर्टर या एड जो भी होगा, उन्होंने इनके साथ बदतमीजी की, ऑलमोस्ट मॉलेस्टेशन करने की कोशिश की द वायर के जर्नलिस्ट के साथ। इन्होंने अपने हेडक्वार्टर में दिल्ली में बोला कि ऐसा हुआ है, क्या मैं इसको रिपोर्ट करूं? उनको कहा गया नहीं, अभी इस तरह की चीज़ें फैलेंगी तो लोगों को लगेगा कि ये क्या हो रहा है, जो दलित राइट्स वगैरह हैं उस पर असर पड़ेगा, आप मत करो। ये बात उन्होंने खुद फेसबुक पे लिखी है, आप जाके गूगल कर सकते हो कभी, दमयंती धर द वायर करके। तो सच्चाई यहाँ तो मैं कह रहा हूँ ना कि हम तो सिर्फ बायस की बात करते हैं। उन्होंने तो एक इवेंट हुआ, उनके सामने हुआ, उनके साथ हुआ, और उस इवेंट को वो कह रहे हैं कि आप रिपोर्ट ही मत करो। तो ये कौन सी सच्चाई है, ये कहाँ की सच्चाई है? तो और यहीं पे और इसी को लेके वो ट्रुथ की बात करते रहते हैं। मैं तो साफ कह रहा हूँ कि अगर कुछ इवेंट हुआ है वो तो हम रिपोर्ट करेंगे ही। जर्नलिज्म का तो ऑब्वियसली वो है, लेकिन आप जिस जर्नलिज्म को अभी तक न्यूट्रल और बढ़िया समझ रहे थे, वहाँ तो ये होता है कि जहाँ आपके साथ कुछ घटना भी गड़बड़ होती है तो आइडियोलॉजी के चक्कर में आपको कहा जाता है कि रिपोर्ट ही मत करो, कल को पता नहीं क्या क्या वो छुपाएंगे। हेलो मैम, हेलो मैम, it seems the questions are one-sided. Yes. That is a very good question, and attempts are there. I think there are a couple of Indian social media platforms, but again, base banane mein samay lagta hai to make it that big. China can do it because China has actually banned platforms like Facebook. So that is why their population doesn't have a choice but to go for the local platform, which India being a democratic country it cannot or it won't do that.
So then your platforms will have to fight against a global leader. तो वो थोड़ा uphill fight है. पहली बात कि मतलब मैं बीजेपी का तो हूँ नहीं, तो मैं ये तो बोलने इसका जवाब नहीं दे सकता कि क्यों नहीं करते हैं सत्ता में होने के बाद भी. शायद वो वजह थी जो पहले आनंद ने कहा था कि भाई उनको तो साफ दिखता है कि इससे हमारा क्या इन्होंने उखाड़ लिया, 282 से 303 पहुंच गए. तो बीजेपी, मुझे लगता है अगर मैं बीजेपी में रहूँगा तो मुझे वही लगेगा क्या इकोसिस्टम बना के क्या फ़ायदा जब ऐसे ही जीत रहा हूँ तो, क्योंकि हम हैं विक्टिम. तो बाय वी व्हाट डू यू मीन? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इकोसिस्टम, एक तो ये टर्म इतना यूज़ होता है, बहुत हद तक समझा भी नहीं जाता है. इसके लिए तो अलग से मैं 10-15 मिनट मुझे बोलना पड़ेगा, लेकिन वो मैं करना नहीं चाहता, टाइम भी नहीं है. लेकिन मैं मानता हूँ, यहाँ तो मैं खुद भी मान रहा हूँ कि हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियाँ हैं, उसको वो करना है, उसको वो करना है. लेकिन जो ये विक्टिम की आप बात कर रहे हो, जैसा इन्होंने कहा था, क्योंकि अभी भी जो नैरेटिव की बात है वहाँ पे हम बहुत छोटे हैं ना, हम विक्टिम ही हैं, और क्या कह सकते हैं. अब एक दो बड़े से टीवी चैनल पे आपको एक आध दो चेहरे दिख जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि, मतलब चलो मैं नाम लेके बोल देता हूँ कि आपको लगता है कि अर्नब गोस्वामी, उसके पीछे तो सब पड़े हुए हैं. अगर 2019 में सरकार नहीं आती तो क्या होता उसका, तो वो तो सबसे बड़ा विक्टिम वो हो जाता. तो भाई मैंने मान के मैं चल रहा था कि मेरी लाइफ तो बर्बाद कर देंगे, मैं पटना चला जाऊंगा और कोई बच्चों को ट्यूशन व्यूशन पढ़ाऊंगा IIM अहमदाबाद से MBA करके. तो विक्टिम तो हम हैं, हमें अभी बहुत उसको आगे बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि वहाँ पे है ना, आपको मतलब आपका कोई करियर नहीं बन सकता, कुछ नहीं बन सकता, तो विक्टिम अभी हैं हम. दिन भर हम रोते नहीं रहे, इस बात पे मैं मानूंगा कि ऑब्वियसली इसलिए नए नए वेबसाइट शुरू हो रहे हैं. अगर जैसे ऑप इंडिया शुरू किया तो कुछ किया तो सही, अभी लॉस में ही चल रहे हैं लेकिन चला तो रहे हैं. तो कोशिश कर हमारा, मैं ये मान के नहीं चलता कि बीजेपी कुछ कर दे. वो बीजेपी कल को रहेगी नहीं रहेगी पावर में, खुद करना पड़ेगा. अर्नब के बारे में मतलब आई एम ऑब्वियसली नॉट ऑथराइज्ड टू टॉक ऑन हिज बिहाफ, बट एशियानेट रिपब्लिक में सबसे बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टर है, तो मैंने बहुत करीब से देखा है उन लोगों को, किस तरह के स्ट्रगल थे, किस तरह के डर थे. बहुत आसान नहीं है ये सारी चीज़ें. और अगेन जैसा कि हमने बताया कि, और राहुल ने भी बोला, हमारी बस शुरुआत हुई है, सिर्फ 5 या 6 साल ही तो हुए हैं, अभी 20 साल की लड़ाई बाकी है जो करना पड़ेगी. अगर आप जैसे स्टूडेंट्स हैं ठान लेंगे तो हम जीत होना है हमारी फाइनली. Ma'am, I am Prince Opoku. Ma'am, I'm Prince Opoku from Ghana, and my question goes to you. In your presentation, you said fake news has remained constant and it will continue to be. And you gave an example of an election prediction where it backfires. It tends to be opposite. But we understand the power of social media, whereby politicians are all over nowadays on social media. Trump and other people are using it. Do you think society have come to a point whereby, let's take Indian society or India as a whole, whereby people can digest the fake from the raw, pointing the fact that people can look or observe from reality and make decisions? Do you think we have reached that point? And what do you suggest as a media group or fight this kind of issue? I'm only going to talk about India. I know that there have been massive allegations in the US elections or whatever, but that's not my domain, so I'm not going to talk about that. But in India, if you see, before the 2019 elections, the whole of mainstream media actually painted a very different picture. They never gave BJP a full majority. They always said that even if the BJP is going to win, they're going to win by a wafer-thin majority. They're going to win only 220, 230, 240 seats at the most. And I was speaking to my journalist friends who were actually in UP, who were actually in MP, who were actually doing ground reporting. And he was saying that on ground I see a totally different picture than what you read in the mainstream media. On ground I see that people are saying that, oh, I'm going to vote this government because they made a toilet. I'm going to vote for this government because it gave me a gas cylinder. I'm going to vote for this government because this government is the only government that has the guts to go into Balakot and do airstrikes. Multiple reasons.
But the ground reality was very different from what the mainstream media was projecting. And I saw that. I was on Times Now on the election results day, and there were people from other parties and other, ideological bents of mind also. And as the results started coming in, and I could see their faces, and I could see their faces fall, because even they had believed the propaganda that was there in the mainstream media, and they also felt that, this can't be true. That is why this whole fake narrative about EVM being faulty and all EVMs being connected in some kind of, mind-boggling science-fi horror thing or whatever is done. So I don't think, the Indian electorate is, touch wood, a very smart and very aware electorate. They know exactly what is going on. They can see who is doing work and who is not doing work, and they vote differently on state issues and they vote differently on central issues. Otherwise, MP which went to vote last year gave a totally different result, and MP during Lok Sabha elections gave a completely diametrically opposite result. So people know. So I don't think that people have lost the ability to differentiate between fake news and what's happening on the ground. But yeah, there is a danger that a fake narrative is being set, and there are a lot of times bad things like, it's easy to incite people's passions over something that has not even happened. Like, for example, somebody from my society, and that person is a very, very senior professional, he has shared some video from Guatemala about a woman being burnt. Now you can see that it's not a video from India because the people are speaking Spanish. You can actually hear it. But he got it forwarded saying that, there is a lady from Northeast who is being burnt alive because she's going to the church. And he forwarded it without thinking, without even going through it, because the horror value of that video was so much that he just forwarded it, and then he realized that, I did a wrong thing. And then he admitted that he did a wrong thing. But this happens a lot. And that needs to be tackled on a war footing. सॉरी अभी डिनर का टाइम हो चुका है, हम लोग आधे घंटे लेट हैं. आई एम सॉरी. आप डिनर के टाइम पे पैनलिस्ट फ्री रहेंगे, आप पर्सनली क्वेश्चन कर सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑलरेडी हाफ एन आवर लेट. तो सर अलग से आप मिलके बात कर सकते हैं. डिनर के लिए आधे घंटे लेट हो गए हैं. अभी यहाँ से जाने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स थे. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अभिनव, शेफाली एंड राहुल. इतना आपने टाइम दिया. हेक्टिक शेड्यूल काफ़ी रहता है, फिर भी टाइम निकाल के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके इनविटेशन यहाँ पे आए. और इस बार के डिस्कशन से काफ़ी अच्छा लगा कि बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी से लोग हैं, थोड़ा डिसेंट भी है, डिसएग्रीमेंट भी है, और इसीलिए डायलॉग पॉसिबल भी है. नहीं तो वो मोनोलॉग या एक इको चैम्बर बन के रह जाता. तो काफ़ी अच्छा है. और अलग अलग इंस्टीट्यूट से लोग आए हैं, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्रीज से भी, घाना से भी डेलीगेट्स हैं. तो एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन चल रहा है. कोशिश रहेगी कि कल भी और उसके बाद भी लगातार ऐसा हेल्दी डिस्कशन हम लोग करते रहें. और इसके लिए कल अभी इसके बाद डिनर होगा, डिनर के बाद कल्चरल सेशन होगा. कल ब्रेकफास्ट के बाद एक आधे घंटे का आइस ब्रेकर वेदांत भवन में, जहाँ पे आज पैरेलल सेशंस हुए थे, वहाँ पे आइस ब्रेकर सेशंस रखे हैं, जहाँ पे हम कुछ इनफॉर्मल डिस्कशंस कर सकते हैं कि इस तरह के डायलॉग्स हम अपने एरिया में, अपने लेवल पे कैसे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं. तो कुछ जोन वाइज वहाँ पे हम लोग इनफॉर्मल ग्रुप्स में बैठ सकते हैं. ऐसे कितने लोग हैं जिनको इंदौर कन्वीनियंट पड़ता है? इंदौर. ऐसे कौन है जिनको जबलपुर थोड़ा इजीली अप्रोचेबल है? ओके. भोपाल मैक्सिमम, ग्वालियर, इन सब के अलावा मध्य प्रदेश से बाहर के कुछ लोग होंगे, आउट ऑफ एमपी. ठीक है. तो हम ये जो 4-5 ग्रुप्स में बैठ सकते हैं, नंबर्स भले ही डिफरेंट हों, कम ज़्यादा हों, अलग अलग ग्रुप्स में, इनफॉर्मल ग्रुप्स में बैठ के हम आइस ब्रेकर्स करेंगे. तो 8 to 8:45 ब्रेकफास्ट रहेगा. 8:45 to 9:15 आधे घंटे का आइस ब्रेकर पैरेलल सेशन वाले वेन्यू पे वेदांत भवन में हम लोग करेंगे. और कल की थीम है डीकोलोनाइजेशन, और कल
तीन बहुत ही अच्छे स्पीकर्स डिकोलोनाइजेशन पे हमारे बीच में एड्रेस करेंगे। ब्रेन वॉश रिपब्लिक पे नीरज अत्री जी, डीकोलोनाइजिंग इंडियन सिविल सर्विसेज काफ़ी नया टॉपिक है इंडियन एकेडमिया में हमारे डिस्कोर्स में। डीकोलोनाइजिंग इंडियन सिविल सर्विसेज पे श्री संजय दीक्षित हमारे बीच उपस्थित हैं, आप कल ये सेशन लेंगे। तीसरा पोस्ट मॉडर्निज्म एंड नियो कॉलोनियलिज्म, ये मनोज कुमार श्रीवास्तव जी जो एमपी गवर्नमेंट के ACS हैं, तो राजस्थान ACS एंड MP ACS डीकोलोनाइजेशन पे पैनल्स रहेंगे। उसके बाद वापस से कुछ वर्कशॉप रहेंगी पैरेलल सेशन में, और उसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी। तो ये कल का शेड्यूल और थीम है। अभी हम लोग लंच, अभी टाइम हो रहा है 9, हम लोग कितने बजे तक लंच से वापस आके कल्चरल सेशन के लिए बड़े वाले हॉल में रिपोर्ट कर सकते हैं? डिनर के बाद, सॉरी आई एम सॉरी, डिनर के बाद कितने बजे तक हम रिपोर्ट कर सकते हैं? आधे घंटे लेट हैं हम, 1 घंटे का टाइम था। 9:45 सफिशेंट? 9:45 ठीक रहेगा। ओके, सो मेक श्योर 9:45 पे आप सभी लोग बाजू वाले बड़े हॉल में रिपोर्ट कर लें। वहाँ पे ध्रुवा बैंड की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस, कल्चरल परफॉर्मेंस होने वाली है। थैंक यू सो मच।